All set? Shall we start? So, welcome to the class. This class is on which subject? Entrepreneurship, creativity and innovation. What comes in your mind when you go through or come across this term called entrepreneurship? क्या लगता है आपको? क्या आता है? Anyone? हाँ प्लीज. स्टार्टअप करना और owning your business. Is there anyone who is doing startup right now? Okay. अच्छा मुझे लगा आप भी हाथ उठा रही है. Okay. Is there anyone who is having some idea in mind कि okay यार if not job then I'll do this? Anyone? Fine. Good. Perfect. So this is the core paper, right? Means everyone is supposed to study this. No choice. तो मतलब आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना ही है चाहे जो मर्जी हो जाए. आपके मन में है नहीं है. ठीक है. एंड ओके अनदर क्वेश्चन. So let me introduce before starting and asking that question. My name is Dr. Ramesh. I am from Shahid Sukhdev College of Business Studies, if you have heard about the college. And I have done my PhD in social entrepreneurship. And luckily, I am holding the position of CEO in our incubation center, Shahid Sukhdev College of Business Studies, SSCBS Innovation and Incubation Foundation. I'll come to that also. And in addition to that, I am executive officer in Udmodya Foundation, which is startup ecosystem of Delhi University. Yeah, please come. Why it is important to share my credentials? One thing, as I'm working as assistant professor in Shahid Sukhdev College of Business Studies. एक सवाल आपके मन में आ सकता है ना कि खुद तो जॉब कर रहा है, लोगों को आके एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है. आया सवाल नहीं आया? So if I teach you, do you feel that okay I am going to do justice with? So is it relevant? See, let me tell you, I'll share short story that will give you clarity and that will share my idea of entrepreneurship. I was a school teacher for 9 years and 4 or 5 months. I am from Manali. I belong to Himachal Pradesh. So I was a school teacher. I was having a government job. Permanent नौकरी मेरे पास थी. And I resigned that job and joined Delhi University on contractual basis, on ad hoc basis, in 2013. Okay. And another thing, it is important to share with you. I have done my entire education in Hindi medium. And I was a teacher in a Hindi medium school. Therefore, I was teaching in a Hindi medium also for 9 long years. Fine. And suddenly, I decided to join Delhi University. And that too, I joined Hindu College, North Campus College. Many of you are aware, right? North, South, ये सब थोड़ा रहता है यहाँ पे. I was not aware, luckily. So this is how I landed in Delhi University. Another thing, why I am telling you my background, so it will give you some kind of connection. So my parents were never enrolled as student in school. वो कभी स्कूल ही नहीं गए. So I am the first generation. अपनी फैमिली में मैं हूँ जिसने पढ़ाई की और जो पढ़ने पढ़ाने के लिए इतने आगे तक आ गया. I have recently done my PhD. मतलब 2013 में मुझे अवार्ड हुई है. I'll share this story. In 2015, I was with Hindu College for 1 year, 10 months actually. And within those 10 months, I have gone through so much of, North Campus वाला जो होता है ना? Why I am sharing this? Because it is closely related with the entrepreneurship education also. ऐसा नहीं है कि I was not, exposed to the English subject. 12th तक मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है इंग्लिश.
बट मैंने पढ़ा एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ लैंग्वेज। डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैंने एज अ लैंग्वेज पढ़ा होता, एज अ लैंग्वेज उसको समझा होता, तो मुझे शायद वो फोबिया नहीं होता कि यार मैं नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में जाऊंगा, हाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर माई टॉक, हाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लेक्चर। सो दिस वॉज वन थिंग। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप इज टॉट थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही पढ़ा रहे हैं या मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। एंड आई वॉज द kind of exposed to the entrepreneurship accidentally. Believe me, during my entire education, I have never studied this subject. I don't remember कि मुझे ये entrepreneurship बोलना भी कभी इतने confidence से आया होगा, क्योंकि मेरे लिए तो फोबिया है ना, as I said, कोई भी वर्ड जो लेटर ई से शुरू होता है, आई नीड टू प्रोनाउंस दैट एज entrepreneur. इट इज वेरी अभी तो मैं बड़ा आराम से कंफर्टेबली बोलता हूँ. सो इन 2014 I joined Shahid Sukhdev College. So in 15 what happened? यूजुअली होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, टीचिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब जाएंगे, फैकल्टीज होते थे देयर ओन प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, राइट, बिकॉज दे वर टीचिंग दो सब्जेक्ट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आई वाज टीचिंग अकाउंटेंसी इन स्कूल, तो मुझे आई वाज कंफर्टेबल कि अकाउंट्स में पढ़ा लूंगा. अच्छा, व्हाट हैपेंड व्हेन इट कम्स टू एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स? सो एंटरप्रेन्योरशिप वाज द पेपर एंड आई वाज द फैकल्टी. एक्सीडेंटली मिले हैं हम, क्योंकि मेरी चॉइस के जो सब्जेक्ट्स दैट वाज ऑलरेडी अलॉटेड टू समवन एल्स. सो व्हाट मैं क्या कर सकता हूँ? नथिंग. जॉब थोड़ी छोड़ूंगा कि नहीं मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, मैं छोड़ के चला जाता हूँ. जॉब मिला है मुश्किल से, है ना. तो एक साल हिंदू कॉलेज में अडॉप्ट करा था. 2014 आई गॉट परमानेंट इन शहीद सुखदेव कॉलेज. 1 सेमेस्टर आई टॉट अकाउंटेंसी, लकीली मुझे मिल गया. एंड इन 2015 देयर वाज नो सब्जेक्ट ऑफ माई चॉइस एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज देयर एंड आई वाज द फैकल्टी. सो वी मेट एंड आई स्टार्टेड डूइंग. एक चीज़ है, आई बिलीव इन ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो चीज़ें अचीव हो जाएंगी. दिस इज माई लाइफ प्रिंसिपल. ये मेरे पापा की दी हुई सीख है, बेटा कुछ भी करो ईमानदारी से करो और मेहनत से करो, हो जाएगा. सो आई वॉज डूइंग सेम थिंग. मैं रोज़, क्योंकि उससे पहले पढ़ा नहीं था, रोज़ आता था, कुछ ना कुछ चीज़ें जो टॉपिक है नेट पे एक्सप्लोर किया उसको, एंड नेक्स्ट डे आई एम गोइंग एंड डिलीवरिंग माई लेक्चर. आई वॉज हैप्पी. वाई आई वॉज हैप्पी? बिकॉज आई बिलीव कि मैं जो कर रहा हूँ आई एम डूइंग ग्रेट. जो भी मेरी बेस्ट पॉसिबल थी, आई वॉज पुटिंग दैट 100%. And this was going on. One fine evening when I came back from the college, I was scrolling through Facebook, and there was one page which was named as SSCBS High Court. And what was the beauty of that page? Anyone can post there without mentioning their identity. कोई भी लिख सकता है वहाँ पे कुछ भी. तो one post I came across, the post was, what an irony that a salaried person teaching us about entrepreneurship. He is motivating us, he is encouraging us to become entrepreneur. जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा, अभी दो ऑप्शंस थे मेरे पास. एक, मैं पढ़ लेता, ठीक है ना, बच्चे ने लिखा है, why to give so much of attention to this. सेकंड, जो मुझे लगा कि यार वाकई ही am I doing justice? The question is very valid, right? Anyone can feel like same. खुद तो नौकरी करता है, खुद जॉब कर रहा है, and he is asking us to become an entrepreneur. So that was something which has shaken my mind. मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया. And I was, अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं जाऊँ नेक्स्ट डे और मैं बोलूँ कि क्लास में माफ़ी मांगूँ, प्लीज़ मुझे एडजस्ट कर लो. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. So I started exploring that. Okay यार, मतलब कैसे हो सकता है? I am not the first person who is teaching entrepreneurship. Entrepreneurship is taught throughout, for years. The people who are teaching, the teachers only, they must have also came across such questions. अगर नहीं पूछा तो किसी ने सोचा तो ज़रूर होगा. Why I am sharing this story? Because वहाँ से मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने पढ़ाने की बदल गई. See, literal meaning of entrepreneurship, what we read or speak about, it is given by some Western authors, but we all know that India was named as सोने की चिड़िया, golden world. वो भी कब? सदियों पहले.
एंटरप्रेन्योरशिप की टर्म तो उसके 100 सालों के बाद आई होगी, 200 सालों के बाद आई होगी टर्म एंटरप्रेन्योरशिप, बट वी वर एंटरप्रेन्योरियल एट दैट टाइम ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस वॉज देयर, एंटरप्रेन्योरशिप वॉज देयर, बट पीपल वर नॉट नोइंग इट. सिमिलरली what we have taken entrepreneurship as a narrow meaning of this term called entrepreneurship. What is entrepreneurship? It is starting, as we all said, you know, कि startup करना है, starting your own business, doing something at your, this is the entrepreneurship. So who is the entrepreneur? Those who are doing this. So this is the literal meaning what, you know, we have driven from that term called entrepreneurship, जो बहुत बाद में आया, जबकि लोग तो उससे पहले से भी कर रहे थे. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि क्या है, एंड लकीली आई मेट विद द पीपल, यू नो, एट गुड इंस्टीट्यूशंस लाइक EDI अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, एंड देन वी डिस्कस्ड. सो आई डिस्कस दिस क्वेश्चन कि लोग ऐसा, बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन. देन दे आस्क मी, ओके, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु परफॉर्म्ड ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट? एंड व्हाट आर दोज एक्टिविटीज, व्हाट आर दोज ट्रेड्स? So are they trait only applicable in the field of entrepreneurship only? If I ask you, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, as per your understanding, what are the traits of an entrepreneur? जोर से. क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वेरी गुड, रिस्क टेकर, डिसीजन मेकर, लीडर. तो ये ऐसे कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ बिजनेस में ये प्रिंसिपल्स है, ये क्वालिटीज जो है अप्लाई होनी है? इवन अ होम मेकर कैन बी इनोवेटिव, इवन होम मेकर कैन बी क्रिएटिव, वी हैव सीन दिस. कोई भी हो सकता है. आई एम डूइंग जॉब, आई एम नो, मैं टीचर हूँ, मेरी अप्रोच, मेरी मेथोलॉजी जो ट्रेडिशनल मेथोलॉजी से अलग हो सकती है, मैं क्रिएटिव हो सकता हूँ. तो कोई भी क्रिएटिव हो सकता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरियल हो सकता है. जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट फॉर बीइंग एंटरप्रेन्योरियल यू नीड टू इन्वेस्ट सम मनी समवेयर, नीड टू रिस्क योर मनी, and you know, then only you will consider as an entrepreneur, and then only your process, so whatever you are doing, that is considered as entrepreneurship. No. आपको क्या लगता है, जिस किसी ने भी ये बड़े बड़े बिजनेसेस, सपोज गूगल शुरू किया, क्या वो आज भी वही फाउंडर सारी चीजें कर रहा है क्या? Their employees are doing it, right? They have given that platform. अब वो employees, they are doing job there, but they are doing creative things. वो भी तो entrepreneurial है ही. So my friends, here it comes that when we talk about entrepreneurship, सबसे पहले तो एक ना, बहुत बार मैंने एक चीज़ देखी है, I have seen this in my classes, wherever I go for sessions, एक चीज़ ये होती है, एक और चीज़ in between I am asking one more thing. अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो कोर सब्जेक्ट है, देयर इज नो चॉइस, राइट? अगर चॉइस होती तो कितने लोग इस सब्जेक्ट को नहीं लेके दूसरी चॉइस लेते, क्योंकि आपको अपना बिजनेस नहीं करना. बहुत सारे लोग ऐसे होते, क्योंकि उनको whenever and wherever we, you know, come across this term called entrepreneurship, 90% of people feel disconnected. उनको लगता है कि this is not my area, I am not going to start a business, I am not going to do business, so why to study this, why to explore this? So this is the one of, you know, similarly, जैसे मैंने बोला ना, अंग्रेजी की जैसी बात है. अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, तो आप इसको सब्जेक्ट पढ़ोगे, ग्रेड्स आपके आ जाएंगे, है ना, पास हो जाओगे, फायदा कोई नहीं है. जैसे मुझे भी आज मैं थोड़ी बहुत बीच बीच में आपने देखा होगा कुछ अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ बीच बीच में ना, वो अंदर से अभी नहीं आता ना कि मैं पूरा. पॉइंट क्या है, सिमिलरली जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे, यू विल लिमिट योर लर्निंग, बिकॉज योर फोकस इज ऑन जस्ट पासिंग दी डिग्री. आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए फॉर दैट. माई humble request is, in entrepreneurship class or in any subject, have a practical approach. I am not expecting that by the end of this semester you all are going to have your companies. No, possible नहीं है. Maybe 1%, 2%. अगर बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा पढ़ा लिया तो 5% people may, you know, come forward कि okay, we want to do our, you know, startup kind of thing. Otherwise, my focus, my, you know, intention is, I just simply want you all must have bent, you know, entrepreneurial kind of thinking now, कि आप एक entrepreneur की तरह सोचें. करना बात की बात है,
ऐसा नहीं है कि जिसने आज इस सेमेस्टर में, if you have studied this paper in this semester, as I said, I'm not expecting by the end of this course you are going to have your startup. No, but at least you will have that entrepreneurial mindset, entrepreneurial thinking, entrepreneurial thought process. How an entrepreneur see things, how an entrepreneur solve a problem. If simply we understand, we try to understand that process only, we will apply that process in any sphere of our life. कितने लोग वर्किंग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग? गुड नंबर, राइट? तो आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो. जो लोग काम जो भी वर्किंग नहीं है, मैं उनको भी एक चीज बता दूं. इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू टुमारो and you will reflect the qualities of an entrepreneur, your chances of getting in is very high. Today people are looking for self motivated kind of people, जिसको खाली ऑब्जेक्टिव बता दो कि दिस इज ऑब्जेक्टिव, वी वांट टू अचीव दिस, हाउ, व्हेन, वेयर, दिस इज ऑल अप टू यू. मुझे नहीं चाहिए अपने ऑफिस में ऐसा आदमी जिसको एवरी मॉर्निंग आई गो नीड टू गो हिम, टेल हिम दैट दीज आर द एक्टिविटीज, यू प्लीज कंप्लीट बाय इवनिंग. नो, आई सिंपली वांट अ पर्सन जिससे मैं डिस्कस करूं कि दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव एंड ही विल कम टू अस. बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं. सेल्फ मोटिवेटेड लोग चाहिए. तो वो कैसे होंगे? वो होंगे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का, पढ़ने का थोड़ा सा नज़रिया बदलेंगे. सो माय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. वी विल नॉट स्टडी, वी विल नॉट go through this paper, this subject as a subject. We will try to explore it differently. What I am expecting that कि आप इसको एज अ लाइफ स्किल और लाइफ स्टाइल की तरह लें. कैसे हो सकता है? We will see in coming slides. So if the literal meaning of entrepreneurship, it is a process of identifying opportunity, taking calculated risk and creating innovative solution to the address challenges in the market. If we go through this definition, entrepreneurship is what? It is nothing, it is a process. Process means there are certain steps, interrelated steps, one after another we perform, and ultimately goal क्या होता है? वो problem solving या market में whatever problem is there to solve that problem. So, and who are the entrepreneurs? Entrepreneurs are the individual who envision new possibilities, develop ideas into viable venture, and drive economic and social change through their initiatives. Now come back to the process or entrepreneurship definition. There are certain words. Identifying opportunity. Is it possible for everyone to identify opportunity? Why? नो तो मुझे भी लगता है नो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया. लेकिन क्यों लगता है अपने को कि हम नहीं कर सकते? See, it is all about our perspective. It is all about, how you see things. आप चीज़ों को देखते कैसे हो? If all of us, we are looking everything, coming to us as a problem, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम पे देखेंगे. हम में से कुछ लोग होंगे, there must be some of us, those who are looking for, okay, this is the problem, perfect, and how we can solve this. And when it comes how we can solve this, this will open possibilities of identifying the opportunities. Problem तो है, me, you, everyone, we all are facing the problem, and some of us may come forward and try to find out how to solve it. If I am able to find out how to solve it, that is an opportunity for me. Clear hai? So first learning is, don't see problem as a problem, try to see them as opportunity to solve them. कि how we can see, it is all about perspective. बहुत आसान काम है किसी भी चीज़ के लिए. सबसे दुनिया का सबसे आसान काम मालूम क्या है? कंप्लेंट करना, वो भी कहीं पे भी करना. ऐसा नहीं कि वे रेलेवेंट अथॉरिटी से करें तब तो समझ भी आए, कहीं पे भी आपस में फ्रेंड पे, अरे कुछ नहीं कर रही है सरकार. बहुत आसान है ना बोलना. वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इन दिल्ली, सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने डिस्कस किया. कुछ लोग होंगे जो उसके सॉल्यूशन पे भी बात कर रहे होंगे, सॉल्यूशन पे भी काम कर रहे होंगे. मोस्ट ऑफ अस वी आर जस्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम. There are some of people, those who are discussing about possibilities to solve those problems. If
we find that possibility is feasible, doable, achievable, that is an opportunity. Another thing, taking calculated risk. And what is this calculated risk? Calculated risk क्या है? क्या समझते हैं आप लोग calculated risk से? One by one, yes? Pros and cons. कि भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है. Suppose कोई एक सिचुएशन है जिसमें सक्सेस के चांसेस 5% है, 95% चांसेस कैसे हैं? फेलियर के. जो एंटरप्रेन्योरियल होगा वो ये देखेगा, उसका फोकस इस चीज पे होगा कि हाउ आई विल बी देयर इन दैट 5%. ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं उस 5% में रहूंगा. अगर बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज है ना, जहां पे पता है कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, उसको तो हम नहीं कहेंगे कैलकुलेटेड. अगर आपको लगता है कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन क्वालिटीज जो मेरे पास होंगे, तो आई विल फॉल इन दैट कैटेगरी. सो मेकिंग यूर सेल्फ इन दैट शॉर्ट परसेंटेज ऑफ सक्सेस क्राइटेरिया, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क. आप, इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि ना आज एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कभी भी इमीडिएट ही नहीं हो सकती है. अपॉर्चुनिटी जो 10 साल बाद, 15 साल बाद की भी हो सकती है. बट ओनली थिंग यू नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव, दैट विजन टू सी दैट कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू चेंज. टुडे वी ऑल आर यूजिंग एआई, राइट? ऐसा नहीं है कि एआई पे जो काम कर रहा था वो 2023 से ही बैठा था काम करने के लिए. जो एआई पे काम कर रहा था मे बी 10-15 ईयर्स बैक, बिकॉज दे हैव एनविजन, दे हैव सीन दैट कि ये ऐसी चीजें बनेगी, इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू हैपन. सो दे वर making themselves ready for that. The point is how you see that, how you analyze the situation, how you find that ki, okay, what is the requirement of being successful, and you try to make them available to yourself. And if you are able to do that, you will be in criteria of successful people. So that is how they calculate risk. अभी मान लीजिए मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, आपको भी लगता है कि सेम अपॉर्चुनिटी है. अब मुझे लगता है कि आई हैव दैट नेटवर्क, आई हैव दैट रिसोर्सेज अवेलेबल, कि अभी अगर नहीं मुझे नहीं आता है नहीं, तो आई विल मेक माई सेल्फ रेडी फॉर दैट, इवन देन इट इज एन अपॉर्चुनिटी. तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है कि इफ रिस्क इज देयर, हाउ आई कैन सर्वाइव दैट रिस्क, हाउ आई कैन बी बेटर देन अदर्स. इफ आई कैन डू दैट, आई एम अ सक्सेसफुल. देन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस. क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे आगे यूनिट भी है, विल टॉक ऑन दैट ऑल्सो. बट राइट नाउ व्हाट इज इनोवेशन? क्रिएटिविटी क्या है सबसे पहले? व्हाट यू नो क्रिएटिविटी बोलते ही आपको क्या लगता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन इट इज अबाउट क्रिएटिविटी? सॉरी, समथिंग न्यू. क्रिएटिविटी इज एबिलिटी टू थिंक समथिंग डिफरेंट, अरेंज समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग डिफरेंटली. सब में होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं. यही प्रॉब्लम है. हम सब में ब्रेन है, हम सब लोग एक रीजनेबल जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबका है. तो ओनली थिंग इज कुछ लोग उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, अप्लाई करते हैं. बिलीव मी, एज आई सेड, एंटरप्रेन्योरशिप इज स्किल. तो स्किल की एक खासियत होती है, इट गेट बेटर्स बाय प्रैक्टिसिंग. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. सेम थिंग हैपन विद द क्रिएटिविटी ऑल्सो. आपको क्या लगता है जो आज दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेंटर्स हैं, क्या उनकी फर्स्ट पेंटिंग उतनी ही सही रही होगी जिसके लिए उनको अवार्ड मिला? नो. सेम थिंग हैपन विद द राइटर्स, सेम थिंग हैपन विद द कोडिंग जो करते हैं उनके साथ भी. जो कोड लिखते हैं, पहला कोड बहुत बेसिक सा ही होगा, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे प्रैक्टिस दैट. सो दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स आर डिफाइंड इन द लिटरेचर. What is my perspective or my take on entrepreneurship? You can see the picture. This picture will tell you more about how entrepreneurship is taken as mindset or lifestyle. It is, all of us have some plans, right? अपने को लगता है कि ये चीज़ अचीव करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, वो तो बाद की बात है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, देयर आर सम पीपल दोज हु कैन फोरसी व्हाट विल कम इन देयर when they were moving ahead to achieve those goals, what will come in their path. But generally जब कभी भी हम सोचते हैं, you can see that your plan, that is your target. But reality ये है, बहुत सारे ups and downs आएंगे, बहुत सारे adverse situation, favorable situation. People, those who will sail through all these ups and downs, they will achieve the
टारगेट. व्हाट हैपन, ये तो सबका प्लान है, हम सब लोग जितने भी बैठे, सपोज हम सबका प्लान है ये, और रियलिटी ये है, हम में से वही वहां पे पहुंचेगा जो इन अप्स एंड डाउन्स को, आई मीन दोज हु आर हैविंग दोज स्किल सेट, दोज रिसोर्सेज, दोज नेटवर्क, वट एवर पॉसिबल रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो ही वहां तक पहुंच जाएगा. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक दैट ओनली. इट इज a life skill and lifestyle that empowers individual to think creatively, solve problems, adapt the rapidly changing world. So basically my take or my understanding, as I said, after that question, after that exploration, I came to understand that entrepreneurship is nothing, it is life skill and life skill. Life skill to practice and lifestyle to live. अपने आप को हमेशा एंटरप्रेन्योर वाला हैट ऑन रखिए, अकॉर्डिंगली चीज़ों को सोचना समझना शुरू कीजिए. डोंट सी प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम, टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी. नाउ एज आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, that some of us are very good into identifying opportunities, but many of us are not. How we can find out opportunity? See, अगर हम लिटरल मीनिंग के साथ जाएंगे, सिंस वी आर इन MBA क्लास, मीन्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, administering a business or starting a venture is everything is required. Every time we require to have certain opportunity कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज यू आर अ CEO ऑफ अ कंपनी, आपको पता है कि आज जो कंपनी की पोजीशन है आपको उसको और बेटर करना है. इफ यू आर अ CEO इन अ स्टार्टअप फाउंडर, दोनों में डिफरेंस भी है. मैं बड़ा एक फेसबुक पोस्ट डाला था अभी रिसेंटली, मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, तो CEO क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यही है. बट स्टार्टअप के लिए सेम स्टोरी नहीं है. स्टार्टअप के लिए CEO क्या है? चीफ एवरीथिंग ऑफिसर. उसको सब कुछ खुद करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टअप है. अभी इस कहानी पे भी बाद में आएंगे, अभी हम इसकी बात करते हैं. The ability to identify opportunity is among the most important skill for successful entrepreneur and individual. इंडिविजुअल इसलिए लिखा कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर नहीं भी बनना है, अगर आपको इंडिविजुअल भी बनना है, सपोज यू आर वर्किंग विद वन ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी जिंदगी उसी स्केल पे उसी पोजीशन पे रह के खुश रहोगे? सबको थोड़ा सा अपग्रेड करना है. सब एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड. हु कैन अपग्रेड? दोज हु आर एबल टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कि नहीं यार, मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ, दीज आर द स्किल्स दैट आई एम ओनिंग. इफ आई नीड टू गेट प्रमोटेड टू अदर पोजीशन, तो मुझे ये स्किल सेट जो ना एक्वायर करने पड़ेंगे. दे आर कंटिन्यूसली अपडेटिंग देमसेल्फ. पीपल दोज हु आर एबल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी, ओनली दे आर मेकिंग देमसेल्फ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट पोजीशन. दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ. And why, when and how certain individuals are able to recognize the opportunity, where other individuals are either not or do not? The answer is with their knowledge, experience, circumstances, sufferings, etc. आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, ये उसका आंसर है. वन बाय वन हम देखते हैं. एंड माय रिक्वेस्ट इज, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने की कोशिश भी करेंगे इन योर डेली रूटीन. इफ आई आस्क यू, वेरी फर्स्ट थिंग इज नो योर सेल्फ. हाउ मेनी ऑफ यू नो योर सेल्फ? आपको लगता है कि मैं खुद को अच्छे से जानता हूं या जानती हूं? हम जब भी कभी भी किसी से पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, तो वी सिंपली फिनिश एंड्स अप विद टेलिंग आवर नेम, एजुकेशन, माय पोजीशन. ज़्यादा से ज़्यादा मैं आई फील प्राउड इन टेलिंग नो आई एम फ्रॉम मनाली, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को. तो वो कुछ ऐसी चीज़ होगी तो मैं वो बताऊंगा. एंड आई फील दैट कि भाई मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया. सो ये तो ठीक है, इट्स एन आई कार्ड काइंड ऑफ थिंग है ना, आइडेंटिटी काइंड ऑफ थिंग. सो एक्चुअली हु यू आर. मैं अगर अपनी में बात करूंगा, सो माय नेम इज रमेश, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, आई एम CEO ऑफ दिस एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन. इज दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी, टेल मी अबाउट एवरीथिंग अबाउट मी? नो. मुझे किसी चीज़ से डर लगता होगा, मुझे किसी चीज़ से खुशी मिलती होगी, कोई चीज़ से मैं परेशान होता हूँ. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. सो व्हेन इट कम्स टू नोइंग योरसेल्फ मीन्स रिस्पेक्टिंग योर वैल्यूएबल लाइफ, योर बिलीव्स, योर पर्सनैलिटी, योर प्रायोरिटीज, योर मूड्स, योर हैबिट्स, योर बॉडी एंड योर रिलेशनशिप्स. क्या हमने इन सारी चीज़ों को कभी कंसिडर करा? मोस्ट ऑफ द टाइम इन सारी चीज़ों को हमने फॉर ग्रांटेड काइंड ऑफ मान के चलते हैं हम.
कितने लोग हैं जो वाकई ही खुद को जानते हैं? बाय नोइंग योर सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड योर वीकनेस, what is your passion, what is your passionate about, what is your fear and your desire and dreams. क्या हैं? सबके अलग अलग हैं. अगर मुझे ये पता है कि मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, what I am good into, what I am bad into, where I need to improve, this will suppose एक अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे एक वैकेंसी निकली, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. कहीं पे एक वैकेंसी निकली फॉर एग्जांपल कि किसी फॉरेन एम्बेसी में कोई एक जॉब है, ठीक है, सपोज इट इज अ जर्मन एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, एनीथिंग. इंग्लिश नोइंग इज गुड, बट अगर किसी को जापानीज या वो पर्टिकुलर लैंग्वेज भी आती होगी, डोंट यू फील कि उसको एज मिलेगा? सो आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या, आपको पता होना चाहिए. अकॉर्डिंगली इफ आई नो माई सेल्फ, मुझे क्या मैं आई हैव सीन सी आई एम प्लेस्ड, आई एम वर्किंग विद अ गुड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बच्चे ना बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट ले जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही. एवरेज पैकेज समवेयर अराउंड 20 लाख रुपीज़, 15 lakh rupees. But I have seen people, those who are joining some organization, leaving those highly paid job within 2 or 3 months. We have seen number of cases in social media or news that where highly reputed job called IAS, they are resigning, they are suicide, they are doing suicide and everything. Why they are doing that? So it's not necessary that every time position is going to define कि यार मैं IAS बन गया हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी भी IAS से होगी तो मैं बहुत खुश हूँ. खुश होना, satisfied होना, these are different things. So that is why it is very important to know yourself. बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप see one example, me and one of my juniors, he was one class junior to me, both of us joined that school job together. छोटी सी जगह में वहाँ पे हम दोनों ने स्कूल जॉब शुरू किया. मैं वहाँ से स्विच करते हुए, ट्रांसफ़र लेते हुए कहीं कहीं से आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ. माई फ्रेंड इज स्टिल वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर स्कूल विद दैट सेटअप ओनली. 2004 वी स्टार्टेड, 20 ईयर्स. इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छी, मतलब मेरी जॉब अच्छी हो गई है, MBA वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी सैलरी भी नंबर्स में तो उससे कहीं अच्छी है. क्या ये चीज़ डिफाइन करता है कि मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड या खुश हूँ? क्वाइट पॉसिबल दैट ही इज़ वेरी मेरे से ज़्यादा बहुत खुश होगा, क्योंकि उसका वर्कलोड आज भी वही 2 घंटे का है पर डे. 2 क्लास होती है ना, 35 मिनट्स के 4 लेक्चर होते हैं सारे, मतलब वो भी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से 1-1 घंटे की 2 क्लास लगती हैं. हिज फैमिली, हिज रिलेटिव्स, एवरीवन इज अराउंड हिम. मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से कहीं ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड होगा. लेकिन अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो शायद मैं उस सेटअप में, मैं वहाँ पे मैं होता तो शायद मैं उतना खुश नहीं, क्योंकि हर किसी के अंदर एनर्जी अलग है. मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें करना, आई लाइक दिस. सबका माइंडसेट अलग है, सबकी अप्रोच अलग है, सब लोग अलग है. दैट्स वाई people are able to recognize the opportunity and fail to recognize that opportunity. This is the difference, because we all are different from here. We all are different from our physical strength. सबका अपना अपना सेटअप है. सो माय फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट थिंग इज नो योरसेल्फ. अगर मैं आपसे अभी पूछूं क्या अपने बारे में आप 10 अच्छी चीज़ें बता सकते हो, सोचना में पड़ जाएंगे बहुत सारे लोग. वो इंसान जिसके साथ आपने ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा टाइम बिताया, उसी के बारे में 10 अच्छी चीज़ें लिखने को बोलूँगा तो बहुत सारे लोग, हम लोग 10 चीज़ें सोचने में हमने को टाइम लगेगा. सिमिलरली इफ आई आस्क ऐसी what are the 10 things you don't like about yourself, what do you feel कि भाई आपको क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अपने लिस्ट पूरी करना मुश्किल हो जाएगा. वो भी तब जबकि सबसे ज़्यादा समय हमने खुद के साथ बिताया है. आप लोग एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है. सो आफ्टर नोइंग योरसेल्फ, नो योर नेचुरल एनवायरमेंट. नेचुरल एनवायरमेंट मीन्स the earth, biodiversity, ecosystem, the phenomena that constitute the physical world, beauties of the earth जिसको हम कहते हैं. Why it is important? Your own competencies, the resources and valuable opportunity available in the natural environment. If we club them,
वी मे फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसा हो सकता है? यू फील सो? Last year 2023 I visited Ladakh. I was called for a lecture in Ladakh University. I visited there. What I have seen there, सिबकथॉर्न होता है वहाँ पे एक, शर्मा जिसको कहते हैं हिंदी में, सिबकथॉर्न इट्स अ वाइड काइंड ऑफ एक सीड है, इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, येलो येलो कलर का एक होता है, उसकी सिबकथॉर्न टी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कैन यू इमेजिन हु वॉज डूइंग द बिजनेस ऑफ दैट सिबकथॉर्न देयर? पीपल फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, क्यों? लोगों को पता है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, कहाँ मिलेगा? वहाँ मिलेगा। वहाँ वाले लोगों को पता नहीं है। जिसको पता है वो उस चीज़ को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यूज कर, और ये वाइड है, जंगली झाड़ियों पे होता है, किसी की खेत, किसी की जागीर नहीं। ठीक है, वन सच स्टोरी, इट वॉज शेयर्ड बाय द EDI पीपल इन 80s। team of EDI people, they visited Manipur या नॉर्थ ईस्ट में कोई एक स्टेट था, आई एम मिसिंग द नेम। व्हाट दे हैव सीन देयर कि शाम में लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट देयर इन द विलेजेस एट दैट टाइम, सो इन इवनिंग पीपल व्हाट दे वर डूइंग, दे वर बर्निंग अ वाइल्ड सीड एज अ लैम्प। जैसा लैम्प जलता है ना, दे वर बर्निंग दैट वाइल्ड सीड एज लैम्प। उससे वो जो उसको जलाते थे और उससे वो रोशनी होती थी, मतलब दिए की तरह काम करता था वो। एंड EDI पीपल क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप एरिया के हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे जस्ट स्टार्ट टू एक्सप्लोरिंग व्हाट इज दिस, इस सीड में ऐसा क्या है कि ऐसे जलता है दिए की तरह, कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी इसमें। एंड देन दे हैव सेंट दैट दोज सीड टू द लेबोरेटरीज एंड इट इज फाउंड दोज सीड्स वर गुड सोर्स ऑफ tung oil, and at that time India was importing tung oil from China. With the help of those EDI people and villagers, they have started some cooperative kind of society, and they started extracting that tung oil because वो भी wild seed था। ये है, India is divided into 127 agroclimatic zones। हमारा देश जो है वो 127 अलग अलग तरह के जोन्स में डिवाइडेड है, एंड एवरी जोन हैज देयर ओन सेट ऑफ रिसोर्सेज, ओन सेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिमिलरली ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। How we can use those natural resources and available resources to solve those problems? Don't you feel it is a good source of an opportunity? So that's why after knowing yourself, try to explore the locality. जिस जगह आप रहते हैं उस जगह को आप अच्छे से समझो, and try to find out कि how you make money out of that. कैसे आप उस रिसोर्स को यूज करेंगे तो उससे आप पैसा बनाएंगे। कैच वाटर देखा आप लोगों ने? कैच वाटर DS फूड्स का एक आता ना, कैच सोडा, पानी, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, है ना? मैंने देखा है, देयर वाज राइसन, आप अगर पढ़ोगे वहाँ पे बॉटल पे ना राइसन लिखा होता है, इट्स वेरी क्लोज, मतलब नियर टू माई हाउस, हार्डली 10-15 किलोमीटर। व्हेन आई यूज टू गो टू स्कूल एंड कॉलेज, वो सारी की सारी जगह जो है जहाँ पे ये प्रोसेस होता है ये पानी, दैट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ, किसी की ज़मीन थी बट पानी बहुत निकलता था अंदर से, तो खेती नहीं हो पाती थी क्योंकि नेचुरल वाटर सोर्सेज है वहाँ पे। अब नेचुरल वाटर सोर्सेज में जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 24/7 365 डेज पानी निकलता है, तो आपको लगता है वहाँ पे कोई खेती हो सकती है? सो दैट वाज काइंड ऑफ, किसी की लैंड है लेकिन वो बेकार पड़ी हुई है। DS पीपल दे केम, उन्होंने वहाँ पे लीज पे लिया, ज़मीन खरीदी, क्या किया, दे स्टार्टेड फैक्ट्री, सेम वाटर पैक होके पूरी कंट्री में सप्लाई हो रहा है। वो जो नेचुरल रिसोर्स, अगर उन लोगों को पता होता, जिसका वो खेत था, जिसकी वो जगह है, इफ दे वर अवेयर अबाउट, डोंट यू फील कि वो भी कर लेते या कहीं से पैसा उठाते, बैंक करते, कुछ भी करते, लेकिन अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। क्या आ रहा है आपके पास, कैसे उसको आप कर सकते हैं। राजस्थान और गुजरात में कहीं पे ये जो स्टोन माइनिंग होती है ना, राजस्थान में ज़्यादा होती है, राइट? तो स्टोन माइनिंग का किसी ने लीज पे एक जगह ले ली स्टोन माइनिंग की। सो वाइल दे वर माइनिंग, बहुत ज़्यादा पानी रिस रहा था, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे आ रहा था। अगर हम सिंपली सोचें, आपने स्टोन एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ से आपने लीज पे लिया है और वहाँ पे अब आप काम नहीं कर पा रहे हो, वाई यू आर नॉट एबल टू वर्क? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर ड्रेन हो रहा है, जो नेचुरल वाटर है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। नॉर्मल बंदा होगा तो क्या करेगा? बोलेगा कि घाटा हो गया यार। उन्होंने क्या किया,
वाटर प्रोसेसिंग का यूनिट प्लांट बना दिया, पानी निकल रहा है ना, चलो ठीक है. सो एक चैलेंज, एक जो प्रॉब्लम आपके पास है, हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दैट. सो if you are able to recognize this, if you are able to identify these natural resources around you, good source of opportunity. Know your communal environment. हमारा देश is known for what? A culturally rich and diverse country. ठीक है? We all have seen, different kind of locations, different kind of festivals, different kind of, सब जगह पे अलग अलग है ना. साउथ में कुछ और है, नॉर्थ में कुछ है, नॉर्थ में भी, हिमाचल में कुछ, लद्दाख में कुछ, सब जगह पे अलग अलग तरह की चीज़ें. फेस्टिवल्स अलग हैं, छोटे छोटे, हमारे रीति रिवाज अलग हैं. और ये जो रीति रिवाज, ये जो कल्चरली डाइवर्स जिसकी हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना नोज बेटर देन अस. हमारा जो कम्युनल एनवायरनमेंट है, इसको चाइना हमसे बेहतर जानता है. दैट इज द रीजन दैट होली पे कलर चाइना के, दिवाली पे पटाखे, दिवाली पे दिए, दिवाली पे लाइटें, सब चाइनीज चाइनीज चाइनीज. हम लोग नहीं कर पाए इस चीज़ को एक्सप्लोर. या जो नेचुरली हम जो करते थे, हमने उसको क्या कर दिया, भुला दिया. दिस इज अनदर सोर्स ऑफ, this also offers ample of opportunity for an entrepreneur. What is the problem today? When we talk about entrepreneurship, people straight away think about starting a big startup. हमारे देश को बड़े स्टार्टअप के साथ साथ छोटे छोटे स्टार्टअप्स की भी बहुत ज़रूरत है. सपोज एक कंपनी 1000 करोड़ का नहीं करती है, साल में 5 करोड़ का भी काम करती है. डोंट यू फील 5 करोड़ वाला भी अच्छा खासा पैसा कमा लेगा? बड़ा ही क्यों करना है? छोटे बिजनेसेस भी तो होते ही हैं. We were तो known for small scale industry, kind of cottage industry and सारी चीज़ों के लिए we were तो known for that. So even if your community, your small community, that is offering you some opportunity, if you simply solve the, we have such a huge population. आज की डेट में हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका अगर आपने 1% 2% भी आपने हैंडल कर लिया ना, उतने भी आपकी रोजी रोटी आराम से चल जाएगी. तो हम इस तरह से सोचते नहीं हैं. सो दिस इज अनदर सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रायर नॉलेज. प्रायर नॉलेज विच डोनेट्स द यूनिक इंफॉर्मेशन अ पर्सन हैज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक enable that person to recognize particular opportunity. Prior knowledge often gained through experiential learning, either intentionally or unintentionally, by direct experiences or the experiences of the others. Have you heard about मिट्टी कूल? सुना है इनके बारे में? मनसुख भाई प्रजापति, a small town man with a big dreams. इनकी भी कहानी यही है. खानदानी पेशा क्या था? मिट्टी के बर्तन बनाने, पुराना. और कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि जो प्रॉब्लम उसने देखी है ना अपनी लाइफ में अपना काम करते हुए, जैसे मैं फैकल्टी हूँ, हालांकि मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ, तो मैं तो अगर मैं अपने बच्चे को कहूँगा कि उसको बनना है तो वह आराम से टीचर बन जाए. ओनली थिंग इफ ही और शी लाइक, ना, उनको पसंद है तो, नहीं तो नहीं. मोस्टली जैसे अब मेरे पेरेंट्स हैं, देवर मेरे पापा जो है वो कारपेंटर थे. हम 2 भाई हैं, उनका मन ज़रूर था कि दोनों में से एक जो है मेरी विरासत को आगे बढ़ाए, कारपेंटरी करे. लेकिन उनको ये भी पता था कि यार मतलब इसमें ना चैलेंजेस बहुत है. हाँ, करें तो फिर मॉडर्न वे में करें, कुछ अच्छा करें तो ठीक है, नहीं तो ना करे वाली बात. तो प्रॉब्लम्स आपको पता होती है. तो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द मनसुख भाई प्रजापति. हिज फैमिली वाज अगेंस्ट डूइंग द सेम बिजनेस. उनको लग रहा था कि ये नहीं करना है इसको, तो कुछ भी कर ले. सो ही वाज वर्किंग विद समवेयर एंड उसको ना मन में था कि यार कैसे कर सकता हूँ. ही वॉज इनोवेटिव. सो ही केम एंड उन्होंने ये जो मिट्टी के बर्तन का जो है ना, इसका पूरा कायाकल्प कर दिया. जो पुराने मिट्टी के बर्तन और जो ये बनाते हैं उनमें बहुत डिफरेंस है. मिट्टी को एक छोटा सा फ्रिज है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, मिट्टी का बनाया हुआ. इस तरह से उन्होंने उसको बनाया है कि यू कैन कीप योर नीड, जो भी आपकी सब्जी है, फ्रूट्स हैं, इन दैट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रेश रहेंगे. फ्रेश इन द सेंस खराब नहीं होंगे. तो बाय अप्लाइंग योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, क्योंकि खानदानी पेशे से दैट वाज एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उसको अप्लाई किया. ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ किया है इन्होंने.
ही वॉज अ राष्ट्रपति अवार्डी, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला इस चीज़ के लिए। आपकी फैमिली, आपके घर वाले क्या करते हैं उसको आप, फैमिली बिजनेस वाले बहुत सारे लोग होंगे हमारे बीच में, फैमिली बिजनेस वालों को, क्योंकि उन्होंने, उनके दादा ने, पापा ने शुरू किया, उसको आज के हिसाब से कैसे चेंज करना। वी हैव सीन, यू नो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, आपने देखा होगा, साड़ी की दुकान है, ट्रेडिशनल दुकान है, बेटा आया, उसने जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन बेचना बेटी ने शुरू कर दिया और सेल जो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो गया। कर सकते हैं ना। प्रायर नॉलेज जो है दैट इज अनदर सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। फ्रस्ट्रेशन, कई बार फ्रस्ट्रेशन से भी आप जो है, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी अपॉर्चुनिटी लीड कर सकती है। सपोज यू आर वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन, आप बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, आप बहुत इनोवेटिव आइडियाज जो है अपने बॉस को देते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली यू फील कि यार मेरी ना कोई सुनवाई नहीं है, लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है, क्योंकि जब आप छोटी पोजीशन पे होते हैं ना तो पीपल डोंट एक्सपेक्ट। अगर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तो सिस्टम ऐसा है, ईगो इतना हाई होता है ना, उसको लगता है कि इसकी कैसे सुनेंगे। हैव यू सीन दैट गब्बर इज बैक मूवी? वो जो अपने सुनील ग्रोवर जो रोल प्ले करता है, ड्राइवर था ना गाड़ी का पुलिस में, तो ही हैज दैट, यू नो, फुल प्रूफ प्लान टू हैंडल दी गब्बर, बट उसके बॉस से जितने भी सीनियर थे वो तैयार ही नहीं थे। फ्रस्ट्रेशन में वो क्या करता है, आपने देखा होगा, है ना, वो अपने आप से छुट्टी लेके काम करता है और पूरा वो करता है। वो तो मूवी है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। आपको फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। इनकी स्टोरी पे मैं आता हूं, उससे पहले मैं एक रेलेवेंट और लेटेस्ट अपने आसपास का केस, अमन गुप्ता, बोट वाला, वी हैव हर्ड हिज स्टोरी, राइट? ही वाज वर्किंग विद जेबीएल में काम कर रहा था, तो उसने क्या मांगा था? सैलरी हाइक। उसने कितना सैलरी हाइक मांगा था? उसने बोला 50% सैलरी मेरी हाई कर दो, 50% मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो उसके बॉस ने बोला कि ये इंडस्ट्री नॉर्म नहीं है, इंडस्ट्री नॉर्म इज 10%, व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव यू 15%। तो अमन गुप्ता ने कहा कि भाई आपकी कंपनी भी तो इंडस्ट्री नॉर्म से नहीं बढ़ रही है, ये भी तो, जब आप इतना पैसा बना रहे हैं तो मैं भी बना, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि उसमें ठीक है मार्केट में मिलते हैं। बोट आज मुझे लगता है अराउंड 50% का शेयर तो होगा, 50% सैलरी मांग रहा था। फ्रस्ट्रेशन, भाई तुम नहीं दोगे मुझे ये करने का टाइम तो मैं कर लूँगा। एंड स्पेशली जब आप किसी नोन सेटअप में काम करते हैं ना, तो आपको आपके कॉम्पिटिटर का पता होता है। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस, जो मिस्टर पॉल है, इनकी क्या स्टोरी है? ही वॉज मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट पैशनेट अबाउट स्कीइंग, स्पोर्ट्स। स्कीइंग के लिए जाते थे। स्कीइंग में मतलब एक होता है ना कि भाई ठीक है मैं भी रनर हूँ, दौड़ने जाता हूँ, तो बस सुबह उठा अपने पार्क में दौड़ा, वो अलग कहानी है। वो एक होता है कि जो बिल्कुल प्रॉपर पार्ट लेता है किसी इवेंट में, जो पार्ट में, जिसको इवेंट में पार्ट लेना होता है, सपोज 1 साल बाद इवेंट है ना, तो उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी होती है आज से ना। ऑल्दो दे आर नॉट दैट प्रोफेशनल, बट स्टिल दे आर 100% इनटू दैट। तो मिस्टर पॉल वॉज वन ऑफ देम, जिनको स्कीइंग का बहुत पैशन था, पार्ट लेते थे, बट ड्यू टू बैड वेदर ही वॉज नॉट allowed to, or you know, able to go to the slopes for practices। तो उसको लगा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, टाइम तो इवेंट का तो फिक्स है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे, दूसरी जगह, दूसरे देश में जो लोग हैं, दे आर इनटू दिस, दे आर कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग। सो ही केम विद दिस। मैकेनिकल जो ब्रेन है, इंजीनियर है, क्रिएटिव थिंकिंग है, उन्होंने इंडोर प्रैक्टिसिंग एक डिवाइस बनाया, मशीन बनाया। ये सारे के सारे जितने के जितने वो उसी से प्रेरित हैं कि इंडोर सेटअप में कैसे तैयारी हो सकती है। सो दिस इज हाउ समटाइम्स योर फ्रस्ट्रेशन कैन ऑल्सो लीड टू दी opportunity identification. Okay, another important area full of opportunities, knowledge of societal problems, social problems. This is very close to my heart. As I said ना कि मैंने तो PhD भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में किया है। तो सोशल प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं इसमें। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, ये वो है ना, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये कितने पुराने कॉन्सेप्ट होंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई 500-600 साल पुराने हैं ये, है ना?
किसी ने देखा कि यार इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया, बिजनेस है अच्छा खासा। और स्पेशली जिनके पास तो पैसा है, फॉर एग्जांपल हमने देखा संजू मूवी में है ना, उसको तो बाहर भेजा था रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए, सोच कितना पैसा खर्च किया होगा। और इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, बहुत सारे लोग इस काइंड ऑफ बिजनेस है उनके लिए। सोशल प्रॉब्लम्स आर गुड सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। सोशल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम? हाँ, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं। और सोशल प्रॉब्लम्स की ना एक सोशल प्रॉब्लम मीन्स वट एवर वी सी अराउंड अस। अनएम्प्लॉयमेंट सोशल प्रॉब्लम है, ड्रग्स सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सोशल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सोसाइटी में देखो, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो वो सोसाइटी रहने लायक नहीं है। फिर सपोज एक एरिया है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स अगर रहते हैं, नॉर्मल बंदा वहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि उससे लूट हो जाएगी उसके साथ। बिकॉज द पीपल दोज हु आर देयर, दे आर नॉट इन सेंसेस, दे मे अटैक। तो इस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि सोसाइटी में रहनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। तो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अराउंड में बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स बन गए। एक तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये अपने आप में एक अलग एरिया है। बहुतों को ना पहले ये लगता था, मुझे भी लगता था, यू नो, बिफोर स्टार्टिंग माय पीएचडी और स्टडिंग दिस, मुझे भी लगता था सोशल प्रॉब्लम, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट। और नॉट फॉर प्रॉफिट में भी अपने को लगता है, नॉट फॉर प्रॉफिट सुनते ही बहुतों को इन जनरल ये लगता है कि इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि यार ये तो प्रॉफिट कमाते नहीं है, इसका मतलब इनको कहीं से पैसा आता होगा, उसी पैसे को ये बांटते कुछ करते हुए। इट्स नॉट लाइक दैट। CEO of a social venture or social enterprise can have all the amenities or all the facilities or all the pay packages which a general business CEO have, उसको भी हो सकता है वो। सोशल बिजनेसेस क्या है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इफ यू अप्लाई योर इनोवेटिव माइंड टू सॉल्व अ सोशल प्रॉब्लम, you earn profit out of that, but you don't distribute that profit among shareholders. You reinvest that into the mission. But if you have employees, if you yourself are working, you can withdraw the salary out of that. सोशल बिजनेस का दो एडवांटेजेस है। ए, अर्निंग के साथ साथ यू विल अर्न अ गुड रेपुटेशन, गुड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। पीपल दोज हु आर वर्किंग फॉर सोशल कॉजेज, दे आर, यू नो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले मैं एक बात करता हूं। सोशल प्रॉब्लम्स को ना सिन प्रॉब्लम्स भी कहा गया है, SIN, सिन। हाउ एंड व्हाट दिस सिन मीन्स? सोसाइटी को सिन बोलते ही लग रहा है ना, पाप लग रहा है ना। हाँ, एक मिनट पानी पीता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिन को डिफाइन करने से पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आई सिंपली वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट, ठीक है? सपोज देर इज अ रिक्शा पुलर, दिखाई देना चाहिए आप लोगों को, रिक्शा पुलर है ना, अपने अपने हिसाब से इमेज बना लो। हैविंग 2 daughters, 1 wife, his 2 daughters are going into the municipality school, they are studying in 7th or 8th standard. His wife is working in the locality and doing odd jobs, but mainly he is the bread earner of the family. Scenario clear hai? Suddenly this rickshaw puller, he lose his eyesight because of cataract. उसकी दोनों आंखों की रोशनी क्या होगी? मोतियाबिंद की वजह से खराब हो गई, वो देख नहीं पा रहा है जैसे नॉर्मली उसको देखना चाहिए, दिखता है। उसका विजन कैसा हो गया? ब्लर हो गया। क्या क्या हो सकता है? ब्लर विजन हो गया तो रिक्शा चलाना उसके लिए सेफ नहीं है, उसके लिए भी नहीं है और पैसेंजर के लिए भी नहीं है, दूसरे के लिए भी नहीं है, सामने से आने वाले के लिए। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो है, कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट अगर आप नॉर्मली देखेंगे भी, नॉर्मल हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा महंगा है। ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से। और सपोज ये स्टोरी जो है वो आज की ना हो के 80s की हो, ठीक है?
अब इतना इमेजिन कर रहे हैं तो ये भी कर लो कि 80s की ये स्टोरी है, 80s की ये स्टोरी है, तो क्या सिनेरियो हो गया, वन इंडिविजुअल हु इज अ रिक्शा पुलर, सडनली ड्यू टू कैटरेक्ट लॉस्ट हिज eyesight. What will happen? He is not able to do his regular job. The family, sustainability of that family, which was on his earning, now depending on his wife's earning. उसकी वाइफ जो और जॉब करती थी उसके ऊपर फाइनेंशियल क्या होना शुरू हो गया, बर्डन पड़ना शुरू हो गया. बेशक बच्चियां जो है म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में जाती थी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या लग रही है कि हो सकता है बड़ी वाली लड़की को बोले कि बेटा तुम भी कहीं पे और जॉब करना शुरू कर दो, उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट सकती है. इससे भी ऊपर एक और चीज हो सकती है या होगी, दैट इंडिविजुअल हु वाज अर्निंग फॉर हिज फैमिली नाउ डिपेंडिंग ऑन हिज वाइफ एंड हिज किड्स फॉर हिज स्मॉल 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 नीड्स. सपोज वो अगर बीड़ी भी पीता है 10 रुपए का भी, अगर उस टाइम पे 2 रुपए का भी आता होगा, ही इज डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स फॉर दैट. दैट मीन्स उसकी जो डिग्निटी है वो अपने आप में क्या है, खत्म हो गई, वो उसकी डिग्निफाइड लाइफ. सो एक ही प्रॉब्लम हुई है. प्रॉब्लम क्या हुई है, आईसाइट, आईसाइट की प्रॉब्लम हो गई है. सो ऑल दीज आर कॉल्ड स्पिल ओवर इम्पैक्ट्स. सोशल प्रॉब्लम की ये दिक्कत होती है, एक बार ये प्रॉब्लम होती है तो इस प्रॉब्लम के स्पिल ओवर इम्पैक्ट्स होते हैं. सिन में एस स्टैंड्स फॉर स्पिल ओवर इम्पैक्ट्स. समझ आ गया? यही चीज समझ आ गई थी अरविंद आई हॉस्पिटल वाले डॉक्टर रेड्डी को. व्हाट ही हैज डन, आर यू अवेयर ऑफ मॉडल ऑफ अरविंद आई हॉस्पिटल? पढ़ा आप लोगों ने, अरविंद आई हॉस्पिटल के बारे में सुना है? उन्होंने ये कहा कि व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू गेट दैट कैटरेक्ट ट्रीटेड, स्पेशली एट द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इन लोगों को जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज द ट्रीटमेंट इज कॉस्टली. सेकेंडली दे हैव आइडेंटिफाइड दैट कि भाई कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है, इस सर्जरी में ऐसा कोई बहुत बड़ा वुंड नहीं होता है. इट्स वेरी इजी काइंड ऑफ सर्जरी. अगर आप ऐसा कोई बहुत बड़ा जख्म नहीं होता है. सो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने कहा कि भाई इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट इंडिविजुअल 3-4 days इन हॉस्पिटल अंडर ऑब्जर्वेशन, व्हाई नॉट रिलीव हिम द सेम डे. उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी कोई टेक्निकल सर्जरी नहीं होती है, व्हाई टू परफॉर्म दैट सर्जरी इन अ टिपिकल ऑपरेशन थिएटर. दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज द एंटायर प्रोसेस. उन्होंने प्रोसेस को ही इनोवेट कर लिया. इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग दो सैलरी इन द ऑपरेशन थिएटर, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग पीपल इन कैंप्स. टेंट्स में ऑपरेशन होने शुरू हो गए. मॉर्निंग में कोई आता है, अपना कैटरेक्ट का सर्जरी करवाता है, शाम को अपने घर जा सकता है. बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं है. तो सिंपली एक काला चश्मा और कुछ दवाइयाँ हैं. काला चश्मा आप उसको, वो भी कोई एनजीओ उसको फ्री में दे देता है. उसको लगवाने के बाद वन कैन इजीली गो टू होम. दे हैव चेंज द एंटायर प्रोसेस. बिलीव मी, नाउ डॉक्टर रेड्डी और अरविंद आई हॉस्पिटल, दे आर ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ patients every year, not only in India, even abroad. This is the power of innovation. What they have done? They have simply changed the process. तो innovation की जब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि every time you need to have a new product for innovation. Sometimes you may change the existing process. आप उसको change करके भी innovation कर सकते हैं. So this is they have done. Spillover impact जो है, suppose that individual who was not able to do his job just because of that, after treatment he is back on job. वो खुशी वाली पिक्चर फिर से चल पाएगी है ना. फैमिली हैप्पी होनी शुरू हो जाएगी, बंदा फिर से काम पे जाना शुरू हो जाएगा, फैमिली पे बर्डन कम हो गया, बच्चे फिर स्कूल जाएंगे. जिस तरह से स्पिल ओवर इम्पैक्ट है, वैसे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी स्पिल ओवर है. प्रॉब्लम जब सॉल्व होती है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सही होने लगती हैं. आई स्टैंड्स फॉर, सिन में आई स्टैंड्स फॉर इम्पॉर्टेंट. Social problems are very important to solve. You cannot ignore them. अगर आपको देश को तरक्की करनी है, देश की, if you want India to be विकसित, actually विकसित भारत, you have to solve all these social problems. You cannot ignore them. These are important to solve. Why it is important? As I said, अगर जिस एरिया में, मैंने कहा ना अभी, अगर जिस एरिया में ड्रग एडिक्ट लोग होंगे ना बहुत सारे, वो एरिया ही ग्रे एरिया हो जाएगा. नॉर्मली लोग वहाँ पे जाने से डरेंगे. अगर कोई जाएंगे तो बहुत सारे गलत इवेंट्स होते हैं. तो वो पूरा ही, उससे क्या इम्पेक्ट क्या है तो देश का ही पार्ट है. तो वी नीड टू सॉल्व दैट. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व.
N stands for neglected. Who neglect these problems? Big business houses. बड़े बिजनेस हाउस जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में निग्लेक्ट करते हैं. बट स्टोरी इज डिफरेंट नाउ, बट ट्रेडिशनली स्टोरी वॉज सेम. बिजनेसमैन का एक ही एजेंडा होता है. हाँ जी, बिजनेसमैन का एक ही एजेंडा होता है. क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो नहीं. अरे मैं पूछ रहा हूँ, बिजनेसमैन का एक एजेंडा होता है क्या? प्रॉफिट अर्निंग. सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट अर्निंग है. मान लो मुझे ये पता चलता है कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और जिसके लिए मैं बना रहा हूं मुझे पता है उसकी पे करने की कैपेसिटी नहीं है, मैं बनाऊंगा? सेम थिंग, these social issues, social problems are ignored by the business houses because of non payment, or क्या कहेंगे इसको, because the people those who are suffering they are not able to pay them adequately. जितना उनको चाहिए उतना पे नहीं कर सकते, इसलिए उस तरफ सोचना भी छोड़ दिया. गवर्नमेंट वाज डूइंग, इनिशियली गवर्नमेंट वाज डूइंग, ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना नहीं है. इट्स द लेटेस्ट काइंड ऑफ थिंग. 1981 के आसपास से ये चीज़ें शुरू हो गई थी. सोशल बिजनेस बनाना, सोशल सॉल्यूशन करना, वहाँ से शुरू हो गई और वो बहुत पुराना नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट. अब एक चीज़ मैं आपको बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ. दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री. जो लोग पे नहीं कर रहे उनके ब्याज पे कौन पे कर रहा है? टैक्स पेयर्स. दैट मीन्स खर्चा तो होगा लेकिन वो खर्चा कवर कहीं और से किया जाएगा. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी यही है. इफ द सफरर डायरेक्टली इज नॉट पेइंग यू, यू नीड टू फाइंड आउट द सोर्स हु विल पे यू. मे बी गवर्नमेंट में पे यू, मे बी आज की डेट में तो सही हो गया ये 2013 का जो एक्ट आया उसमें, जिसमें हमने कहा कि all the business houses those who are having certain criteria they are supposed to spend 2% of their earning on social causes. What we call that corporate social responsibility. What these big houses have done now, they have created their own foundations. वो अपनी फाउंडेशन एनजीओ के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, उस 2% पैसे को चैनलाइज करते हैं. पॉजिटिव चीज़ें भी करते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, वो भी कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होनी शुरू हो गई. जस्ट इमेजिन कोविड के दौरान अगर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती तो हमारे देश में जो डैमेज हुआ है ना वो कहीं ज़्यादा होता. वी ऑल हैव सीन पीपल दोज हु आर वर्किंग फॉर सोशल कॉजेज और दोज हु आर डूइंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, दे केम फॉरवर्ड, दे हैव डन एवरी बिट ऑफ पॉसिबल फॉर वट एवर पॉसिबल बाय देम. उन्होंने किया, तब हमारा देश जो है उस आपदा को भी पार कर गया. गवर्नमेंट इज डूइंग बट स्टिल लॉट नीड टू डू. दैट्स वाई ऑल दीज सोशल इशूज, सोशल प्रॉब्लम्स, they also offer a big source of opportunity for entrepreneurs. आपको सिंपली आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन के जरिए आप पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लेके आएंगे. गवर्नमेंट, बिग बिजनेस हाउसेज, दे आर रेडी टू पे फॉर दैट. मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज मैंने ये पानी की बोतल बनाई, मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसे दो या कोई दूसरा दे, मुझे पैसे से मतलब है. मनी इज मनी, राइट? सिमिलरली इफ आई हैव क्रिएटेड सम सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आप मुझे दे, कोई और दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. सेम थिंग इज डन बाय दिस अरविंद आई हॉस्पिटल ऑल्सो. उनका मॉडल ही यही है. उन्होंने कहा कि दोज हु कैन पे फुल, दोज हु कैन नॉट पे, नो नीड टू पे, विल ट्रीट यू फ्री. दोज हु कैन पे पार्शली, प्लीज पे पार्शली. ये मॉडल चलाया उन्होंने. और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती हैं जो उनको कहती हैं कि भाई आप ना ये काम कर लो, वी विल पे यू. One such organization is MHAT, Mental Health Action Trust at Kerala. They are working in the mental health sector. Dr. Manoj, he was working for 15 years in UK with family. He came back, started his own social venture. ईमानदारी से काम कर रहे हैं. कम्युनिटी ड्रिवन सोशल मेंटल हेल्थ सिस्टम उन्होंने डेवलप किया. अजीम प्रेम जी फाउंडेशन आई, उन्होंने कहा कि यार वाई यू आर स्ट्रगलिंग फॉर फंड्स, वी आर देयर टू हेल्प यू. द ओनली थिंग, सपोज इफ यू हैव एन आइडिया, पीपल, अपने देश की मैं अगर मैं बात करूं, जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लोगों के पास दान देने के लिए भी, सोशल कॉज के लिए देने के लिए भी पैसा है. एक ही चीज़ जो लोगों को परेशान करती है, उनको ये लगता है कि मैं पैसा तो दे रहा हूँ या दे रही हूँ, सही जगह पहुँचेगा या नहीं, यही बड़ी होती है. इफ़ यू एंश्योर बाय योर एक्शन that whatever money, even a single rupee is paid by the donor, that will reach to the relevant or right people, believe me,
यू विल नॉट एबल टू मैनेज द फंड, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। लोगों को बस यही चिंता है कि जो हम देते हैं सही जगह पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। कितने सारे लोग हैं जो ठगे भी जाते हैं, लेकिन स्टिल क्या आपको लगता है लोगों ने दान देना छोड़ दिया? पीपल डू चैरिटी। सो दैट्स वाई दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। when it comes to finding opportunity in a social problem, another important thing is empathy. सोशल प्रॉब्लम ना सबको समझ भी नहीं आएगी जब तक आप सामने वाले का दर्द नहीं समझेंगे। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है। सिंपैथाइज तो हम सब लोग कर सकते हैं, जो एम्पैथाइज करेगा वो उस कॉज को, उस प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, और तब जाके उसका सॉल्यूशन जो वो ढूंढने की कोशिश करेगा। एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज एक 18 इयर्स जो लड़का है वो ड्रग एडिक्ट है, आपको मिलता है पार्क में, ड्रग एडिक्ट है, आप चाहते हैं कि उसको जो है आपको ठीक करना है, उसको क्या करोगे? डर दूर निकाल देना दिमाग से कि नहीं सर हम तो जाएंगे भी नहीं पास, वो नहीं, मतलब वो आप पार कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ कि भाई मुझे ये आई वांट टू टेक दिस, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ड्रग एडिक्ट है, क्या करेंगे उसके लिए हम? आप अकेले नहीं हो, मैं भी साथ में हूँ, थोड़ा और इंटरेस्टिंग करता हूँ, आप लोग डर रहे हो। मैं मान लो कि वो ड्रग एडिक्ट मैं ही हूँ, और इजी करता हूँ, आप मेरे से पूछ रही हो कि आप ये क्यों करते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब एक मिनट रुक जाओ, स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हो। आपने मुझसे पूछा कि आप ये क्यों करते हो, एंड आई एम सेइंग आई एम डूइंग दिस बाय चॉइस, इंटेंशनली कर रहा हूँ। अब बोलो, मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं करता हूँ, क्यों करते हो? इंटेंशनली करता हूँ। ये तो आप ये आपका जो माइंडसेट है ना, आपको लगता है कि यार ये मनुष्य है, मतलब मुझे देख के कि इसको बचाना जरूरी है, इसकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, ये बेवकूफ समझ नहीं रहा है, ये अपनी जिंदगी को ऐसे ही खत्म कर रहा है, तो मुझे इसको ठीक करना है। आपने हिम्मत भी कर ली, यू केम टू मी, वी डिस्कस, आपने मुझे पूछा, ये रियल स्टोरी आई एम टेलिंग यू। ड्रीम एंड ड्रीम फाउंडेशन, दे वर वर्किंग फॉर दीज किड्स, दो स्ट्रीट किड्स हैं जो नशे में हैं, दोज हु आर नॉट हैविंग रिसोर्सेज एंड ऑल, दे वर वर्किंग विद देम। वन सच केस दे फाउंड कि एक जो है 18 साल का एक लड़का पार्क में है, नशे में है, उनको किसी ने बोला, तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए, एंड व्हेन दे वर डिस्कसिंग दिस वाज द केस। आपने कहा ना कि उन्होंने करना क्यों है, क्योंकि उनका मिशन है, दे वांट दिस वर्ल्ड टू बी बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। तो उनको लगता है कि भाई इसको भी जीने का अधिकार है, समझे तो सही इसका दर्द क्या है, क्यों ये कर रहा है। सो इन डिस्कशन व्हेन दे टॉक टू दैट इंडिविजुअल, दैट बॉय, उसको जब पूछा कि तुम ये करते क्यों हो, तो उसने कहा मैं इच्छा से करता हूँ, अपनी इच्छा से करता हूँ। बोला क्यों करते हो? तो उसने बोला कि आई वॉज इन ऑर्फनेज, मैं एक अनाथालय में था। अनाथालय की एक पॉलिसी होती है कि जैसे ही आप मैच्योर हो जाते हैं ना, एक एज होती है, उसके बाद वो आपको वहाँ पे नहीं रखते, यू नीड टू वेकेट दैट स्पेस। मैं वहाँ से बेघर हो गया, मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास कोई अपना नहीं जो मुझे समझाए या कुछ, तो मैं कभी पार्क में, कभी स्टेशन पे, कहीं पे भी सो जाता हूँ। वहाँ पे जो मच्छर हैं, हज़ारों मच्छर, वो मुझे काटते हैं, अगर मैं सेंसेस में रहूँगा तो सो नहीं पाऊँगा, इसलिए ड्रग करता हूँ। दूसरा, जहाँ से उठा के मैं खाना खाता हूँ, अगर मैं वहाँ से उठा के खा रहा हूँ और अगर मैं सेंसेस में रहूँगा तो मैं खा नहीं पाऊँगा, डस्टबिन से उठाता होगा। जिस तरह से लोग मुझे ट्रीट करते हैं, सपोज मैं बेंच पे सोया हूँ, पुलिस वाला आएगा डंडा मारेगा, कोई दूसरा आएगा लात मारेगा, ए उठ यहाँ से, दिस इज हाउ वी ट्रीट, राइट? अगर मैं सेंसेस में रहूँगा तो मैं ये कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं ड्रग्स करता हूँ। उसको ये कहा कि वी विल टेक यू टू रिहेबिलिटेशन सेंटर। उसने कहा कि मैं 2 बार पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर हो आया हूँ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बंदा ड्रग कर रहा है, ये तो है ही है, लेकिन उसके पीछे का रूट कॉज कुछ और है। जैसे आपने कहा ना कि हम जानने की कोशिश करेंगे, तो जानना ये है कि व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस
which forcing that individual to get into that position, that situation. Then they try to find out कि इसका रीज़न क्या है, इसको वहाँ से रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेके भी आएंगे, फिर ये इसके पास काम नहीं होगा, फिर ये ट्रेनिंग नहीं है इसके पास, जॉब नहीं है, कोई काम इसको देगा नहीं, तो ये फिर से उसी चक्कर में पड़ जाएगा. चलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. विल ट्रीट हिम एट रिहेबिलिटेशन सेंटर, देन वी विल एंश्योर हिम फॉर नेक्स्ट 6 months, विल ट्रेन हिम, विल गिव हिम सर्टेन स्किल सेट so that he will get some work, and if he will get some work, definitely he will get out of that cycle जो उसने ड्रग्स वाला रास्ता. सो पॉइंट ये है कि यू नीड टू एम्पैथाइज. अगर हम हर कोई यही सोचेंगे ना कि फिर मुझे करना ही क्यों है, फिर नहीं होगा, है ना. वो करना है, ये हमने सोचा है, वी वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस इज हाउ दिस वर्क. पॉइंट हियर इज फॉर एम्पैथाइजिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज. सोशल प्रॉब्लम ना, सोशल प्रॉब्लम बहुत बड़ा सोर्स है अपॉर्चुनिटी का, लेकिन उतना ही मुश्किल है. मुश्किल क्यों है? अब अगर आप मान लो कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो ना, नॉर्मल एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप आएंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, घर वाले भी कहेंगे कि सही काम कर रहा है. विशाल तलरेजा जिनकी ये ड्रीम फाउंडेशन है, ही सेड ही वाज, मैं आपको बताता हूँ, वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जीरोक्स में जॉब मिला. ही वॉज वर्किंग विद जीरोक्स. जीरोक्स में जब वो काम कर रहा था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, 3 months का जो अब्रॉड प्रोग्राम होता है ना, एक्सचेंज प्रोग्राम. सो ही वेंट टू फिनलैंड. वो फिनलैंड गए. वहाँ का जो सिस्टम था, फिनलैंड की जो सोसाइटी है, फिनलैंड का जो लाइफस्टाइल है, उससे वो इतने इम्प्रेस हुए, उसको लगा कि यार आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस कल्चर टू इंडिया. क्या कल्चर है हमारे यहाँ पे ना? दिक्कत क्या है हमारी सोसाइटी की? हम लोगों को उसके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जज करते हैं. आपके घर में काम वाली आती है, ठीक है, आपका छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, छोटी नीस है, हूसोएवर, काम वाली जो है किचन में नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खा रही है, छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते जा रहा है, उसकी प्लेट में से उठा के खाना खा रहा है. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना बड़ा ऑकवर्ड फील होगा. आप ही के घर में खाना बनाया, आप ही की सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं. ओनली थिंग दैट बिकॉज दैट लेडी इज डूइंग ऑड जॉब्स एंड शी इज ईटिंग नॉट ऑन द डाइनिंग टेबल लाइक यू, शी इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड. अब बच्चा दौड़ के गया है, वहाँ से उसकी प्लेट से उसने उसका जूठा खाना उठा के खा लिया, अपने को अंदर खलबली मचनी शुरू हो जाएगी. माइंड सेट है और कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसको उस एंगल से नहीं, मैं ही नहीं देखता हूँ उसको अपने एट पार, इसीलिए मुझे वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. डॉगी चाहे आपके प्लेट में आके वहाँ से भी कुछ खा जाए, वो एक्सेप्टेबल है. माइंड सेट. फिनलैंड में जब विशाल तलरेजा गए, उसने ये कहा कि आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन देयर वाज अ इंट्रोडक्शन और इंडक्शन राउंड इन द फर्स्ट क्लास. Everybody was proudly saying, my name is this, I am that, and I am working part-time as a waiter, I am a bartender, I am a sweeper, I am a caretaker. Everybody was telling their odd jobs, what they were doing part-time, big pride. मैं अगर यहाँ पे हम लोगों से बैठे ना, हम में से कोई एक बोलेगा ना कि मैं ना शाम को जो है वेटर का काम करता हूँ, कुछ करता हूँ, बिलीव मी 50% ऑफ अस, ये है कल्चर, हम लोगों का कल्चर है. वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस. सो विशाल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर गई. उसको लगा कि यार, और उसने देखा कि ये जो बारटेंडर, ये जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग हैं, व्हेन ही विजिटेड देयर होम, दे हैव अ वेरी डिसेंट लाइफ. वहाँ पे लोग जो है इस पैरामीटर पे जज ही नहीं कर रहे भाई. उनको लगता है कि ठीक है, ओके, क्योंकि उनके हिसाब से जॉब जो है वो आपको डिफाइन नहीं करती है. आपका जॉब जो है, जॉब इज नॉट अबाउट दैट इज योर प्रोफेशन. आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, वो अलग कहानी है, लेकिन अभी आपका वो प्रोफेशन है. एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो उसको ये चीज़ इतनी इंप्रेस की, ही केम बैक, ही ट्राइड टू डिस्कस विद हिज फ्रेंड्स कि यार मुझे ना ये मैंने सीखा है वहाँ पे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस कल्चर टू इंडिया. इंडिया सच अ ह्यूज कंट्री. यहाँ पे तो या तो फिर हैरी पॉटर आएगा ना, ऐसा करेगा तभी होगा, मुझे नहीं लगता ऐसे होने वाला है. सो सेम थिंग हैपेंड विद हिम. ही डिस्कस विद हिज फ्रेंड्स. कुछ लोगों ने कहा कि यार भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता है. फिनलैंड है ना बेटा, वहाँ गया था, वहीं पे छोड़ गया. कुछ लोगों ने उसका साथ दिया. दे स्टार्टेड 12 such people including him. They came forward and they have established this ड्रीम फाउंडेशन.
उनको लगा कि कहाँ से शुरू करें, इतने बड़ा देश है, कहाँ से शुरू करेंगे। तो लोगों को सी इट इज़ वेरी इजी कि मैं यहाँ पे आके मैं आपको वॉशरूम दे के जाऊँ कि यार हमें सबको ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपर करना चाहिए, इट्स वेरी इजी टू बोले। बट आई नीड टू टेल द पीपल दोज हु आर एट लोअर लेवल, उनको भी तो बताना पड़ेगा कि योर लाइफ मैटर्स मैन, यू नीड टू ना अपने आप को प्राइड के साथ लो। तो दे स्टार्टेड वर्किंग विद दिस स्ट्रीट किड्स एंड व्हेन दे वर डूइंग देयर फर्स्ट वर्कशॉप, उनको जो हॉल चाहिए था ना वो भी उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज ये जो बच्चे थे जिनके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया था वो HIV पॉजिटिव बच्चे थे, तो लोगों ने उसको देने से भी मना कर दिया। फिर इनको समझ आया कि यार खाली अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, अपने को ना ग्रास रूट पे जाके काम करना पड़ेगा। और इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड डिलीवरिंग टॉक्स एंड लेक्चर्स, दे हैव टेकन आर्ट एंड स्पोर्ट्स एज अ मीडियम। उनका स्ट्रीट फुटबॉल करके एक इवेंट होता है, हमारे इंडिया के कितने सारे स्ट्रीट के बच्चे जो आके ना इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करके आए। अगर हम उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, तो दे विल वो आपको ऐसे रोंगटे खड़े कर देंगे, गूज़बम्प दे देंगे कि यार वाकई ऐसा हो सकता है। तो थ्रू स्पोर्ट्स एंड दैट दे आर ट्राइंग टू चेंज द सोसाइटी। विशाल तलरेजा, ये जो हमारा हैप्पीनेस करिकुलम है दिल्ली सरकार का, ऐसे ही आंध्रा में अलग अलग जगहों पे स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं। वो कहता है कि शुरू के 6 साल मेरे घर वालों ने मेरे साथ ढंग से बात भी नहीं की थी। क्यों बात नहीं की? अच्छा खासा बीकॉम करा हुआ बच्चा था, जीरोक्स में जॉब कर रहा था, फिनलैंड गया। घर वालों की चाहत क्या होती है? आएगा, शादी करवा देंगे, है ना, तो वो अपना फैमिली उसकी सेट हो जाएगी। हम सेटलमेंट को वैसे ही देखते हैं, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी लग जाएगी, कहीं पे भी रैंडमली किसी को भी सुनना। यही प्रोसेस है हमारे यहाँ पे सेटलमेंट का। आप जाओ, अच्छे से पढ़ो, DU के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर कॉमर्स वाला है तो फिर ये दूसरा है तो MBA करो, जॉब लो, शादी करो, सेटल हो गया आप। तो विशाल ने वो पाथ ब्रेक करा था। विशाल ने कह रहा कि 6 साल तक, मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि ये जिनके मैं नाम लेके बात करता हूँ, ये मेरे PhD के केस स्टडीज़ हैं। आई हैव स्पेंड टाइम विद देम। तो मैंने जब उनसे बात, तो विशाल कहते हैं कि फॉर दोज 6 years माई पेरेंट्स वर ओके कि भाई ठीक है, कर रहा है, क्या कर रहा है हमें पता नहीं है। व्हेन न्यूज़ मीडिया was writing good about him, he got some recognition, rewards and all, then they realized कि हाँ नहीं, कुछ तो अच्छा कर रहा है। जब जिसको पता नहीं होता ना तो वही चीज़ होती है। मैंने आपको बताया मेरे मम्मी पापा कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है। आई वॉज अ स्कूल टीचर, गाँव में मास्टर बोलते हैं, आई एम अ मास्टर। तो मैं यहाँ आया, आई एम अ टीचर, यहाँ भी मास्टर। मेरे पापा मेरे से कई बार कहते हैं अरे यहाँ भी तो मास्टर ही था, वहाँ पे भी क्या है। उनके लिए सेम है। मेरी मम्मी, आई लॉस्ट हर लास्ट ईयर, उनका सबसे बड़ा रिग्रेट मालूम क्या था? तू दिल्ली चला गया, यहाँ सिलेंडर ख़त्म होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सिलेंडर तो टाइम से उनको, भाई तुम प्रोफेसर बने हो, तुम क्या बने हो, उनको नहीं मालूम। तो पेरेंट्स का ये होता है, जब उनको, मेरे पापा मेरी मम्मी से बात करते कहते हैं, एक बार किसी फंक्शन में गए, वो गैदरिंग में गए, शादी वादी थी कहीं पे, तो जो लोग जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सुखदेव कॉलेज, जो लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं ना। अच्छा प्रोफेसर हो गया तो मतलब कम्युनिटी से ही एक आधी बंदा होगा भाई, गिन सकते हैं, मतलब 3-4 लोग होंगे रिश्तेदारी में, सारे ही अलग अलग जगहों पे, उसमें से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की थोड़ी हवा ज़्यादा है, तो मतलब ठीक है। तो उस शादी में जब गए तो मतलब लोग आए तो पापा से हाथ मिला के अरे मुबारक हो, बेटे ने ये कर दिया, ये कर दिया, क्या कर दिया पापा को पता ही नहीं है। मतलब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, उनको, मैं जॉब यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पे, मैंने कहा ना कि उनको पता ही नहीं है। तो बट उनको खुशी का, तो शाम को जब घर आए तो मम्मी से कहते हैं कि यार लगता है हमारे वाले ने कुछ बड़ा किया हुआ है, सब लोग आके बधाई दे रहे थे। तो उनका वो वाला स्टेट होता है, जब लोग अच्छा बोलने लगते हैं ना तब उनको रिकॉग्निशन होती है कि नहीं इसने भी कुछ करा होगा। सेम हैपन विद द विशाल ऑल्सो। सॉरी, बहुत कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन रिकॉग्निशन घर वालों से तब मिलती है जब उनको लगेगा कि अब ये हम पे बोझ नहीं है, खुद से कमा के खा सकता है। बड़ी दिक्कत यही होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दी अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है सॉरी एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कैसे बनाना, उसकी कहानी आगे डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल पे अब बात आगे करेंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं मैं उस पर बात आता हूं अभी।
चलिए ये सब छोड़िए, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के। अभी आधा घंटा है अपने पास, है ना? हाँ हाँ, 4:30 बजे। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हाउ वी कैन फाइंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अपॉर्चुनिटी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई बात हो तो बताओ। अब ये कहेंगे कि भाई आता है बंदा कहानियां सुनाता और फिर पूछता डाउट भी है ना। एक तो खुद से लेके स्टोरीज लेके आया, वो सुनाई जा रहा है और फिर पूछ रहा है कि डाउट क्या है। लग रहा है ऐसा? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा इन्होंने कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अपने पास पैसे तो है नहीं। एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैं इस इकोसिस्टम से पिछले 6-7 सालों से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं। एक इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रहा हूं, दूसरा जो डीयू का इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें भी अच्छा खासा मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल लो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको पैसा सबसे पहले चाहिए। बिलीव मी, 2014 से, जब से ये मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा कि जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, एनडीए गवर्नमेंट आई है, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में बहुत एग्रेसिवली काम हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉलिसी पहले नहीं थी, यस द पॉलिसीज वाज देयर, बट एग्रेसिवली इंप्लीमेंटेशन की जो बात हुई है वो 2014 में गवर्नमेंट आई, 16 में वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी चीज़ें लेके आए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सारी चीज़ें। तो उसके बाद जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर इतना बढ़ गया है। आज की डेट में आपने देखा होगा 107-8 या 111 इतने कुछ यूनिकॉर्न्स हो गए इंडिया के। कितने? 11 या ऐसा कुछ, 7-11 है ना। मैं थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये है नंबर। ये कैसे हो रहा है? स्टार्टअप इंडिया, अगर मैं इससे पहले ना एक मिनट, मुझे लेट आई नीड टू गो टू बैक अगेन, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अब मैं आपके क्वेश्चन को भी जवाब करूंगा इन बिटवीन ही। इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम होता क्या है बेसिकली? इकोसिस्टम को जानने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग आई वांट टू शेयर। ऑल्दो दिस डाटा इज थोड़ा सा आउटडेटेड है। अगर आप देखेंगे इंडिया जो ना 2022 में 37th पोजीशन पे था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अगर आप यहां पे देखोगे इन 2005 वी वर एट 116, जहां पे मैं बात कर रहा हूं 14 की, वी वर एट 142 पोजीशन, एंड देन वी कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, एंड टुडे वी आर बेटर देन 37, इससे भी कहीं अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का जो स्टार्टअप को लेके जो कल्चर है, इकोसिस्टम है, दैट इज मोर फेवरेबल नाउ। आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर्स है, एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, कितनी ही सारी स्कीम्स हैं। आपके पास आइडिया है ना, अगर पीपल आर देयर विद यू नो डीप पॉकेट्स फुल ऑफ मनी, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया। बस आपके आइडिया में वो बात होनी चाहिए। अब मैं बोलूँ कि जी मैं भी यहाँ पे दौलत राम कॉलेज के बाहर जो चाय का ठेला लगाऊंगा, कौन फंडिंग करेगा? अगर मैं बोलूँगा कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे जो ना बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लोग बोलेंगे कर। आपको क्या लगता है ये जितने भी लोग एआई सेक्टर में काम कर रहे थे, जो आज एआई हो रहा है, 2000 मान लीजिए 5-6 से कोई लगातार एआई सेक्टर में काम कर रहा होगा, कोई तो फंडिंग दे रहा होगा ना उसको। ऐसा थोड़ी कि उसके दादाजी की छुपाई हुई सोने की ईंट उसको मिल गई कि वहां से निकाल के चल रहा है। So people are not investing in the present opportunity only. They are investing in the ideas, and that idea may be implemented after 10 years, 15 years down the line. लोग पैसा लगाते हैं, इसीलिए ना ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपके मेरे ऐसे 100 बंदे के आइडिया में ना थोड़े पैसे डाल के छोड़ देंगे। उनको पता है कि इनमें से 2 आइडिया भी चल गए ना तो मेरे बाकी का कवर हो जाएगा। So पैसा और मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम टुडे। The only thing is you need to have that innovative idea. Idea is everything, but the execution is more important than having that idea. Execution is everything.
The team is more important than the execution. A simple average idea can be converted into a big business if you have a brilliant team. A $1 million idea can be a failure if you don't have right people at right place. लोग चाहिए भैया. ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जितने भी पैसा लगाते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन यू. वो बंदे में देखते हैं कि बंदा कौन है, क्या करना है, इसका विजन क्या है, क्या देखना चाहता है, कैसे देखता है ये चीज़ों को. वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल पे इन्वेस्ट करते हैं. आपको क्या लगता है, आइडिया अपने आप में यूनिक हो सकता है क्या? और ऐसा नहीं है कि एक आइडिया जो मैंने सोचा वो किसी ने नहीं सोचा होगा. भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ग्लोबली इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, द सेम आइडिया कैन बी थॉट बाय नंबर ऑफ पीपल्स. द ओनली थिंग हु इज एग्जीक्यूटिंग देम. एग्जीक्यूशन में भी इनिशिएटेड बाय द मैनी पीपल. ऐसा नहीं है कि मैं खाली सोचा. सपोज इवन एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम. नाउ द सक्सेस डिपेंड ऑन हु इज गोइंग टू डू इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर टीम. कुछ क्लियरिटी हुई? तो बहुत बार ना अपने को ये भी लगता है कि मेरे पास आइडिया तो आई डोंट वांट टू शेयर विद, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे आइडिया शेयर नहीं करना है. लोगों को लगता है आइडिया चोरी हो जाएगा. कितने लोगों को लगता है ऐसा होता है? आप लोगों के पास आइडिया नहीं है या ऐसा सोचते नहीं है? आइडिया देखो, एक चीज़ है, अगर आपका आइडिया इतना यूनिक है, आपको लगता है कि चोरी हो जाएगा, तो यह आपका भ्रम है. आप जब एक बार प्रोडक्ट लेके आओगे, बनाओगे, तो कोई भी बड़ा बिजनेस कॉपी करके कुछ ना कुछ बना देगा. आपकी उतनी रीच भी नहीं होगी. तो ये कुछ चीज़ें कि भाई आइडिया चोरी हो जाएगा, ये सीक्रेट रखना है, शेयर नहीं करना है, ऑल दीज आर मिथ्स. अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को. मुझे ना ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप जब मुझे पढ़ाना है, या आप लोगों को जब पढ़ना भी है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपको डेफिनेशन आती है कि वो आता है कि नहीं आता है. मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि आप प्रोसेस को समझें. आंसर भी जब आप एग्ज़ाम में, सपोज कि आपका स्कोर सिंगल एक एजेंडा है, मुझे एग्ज़ाम पास करना है, उसमें भी अगर आप उसको थॉट प्रोसेस जो आपका है वो एंटरप्रेन्योरियल वे में लिखोगे तो आपको बेनिफिट होगा उसमें. तो पॉइंट इज, ठीक है, सर्टेन जो एक पॉइंट्स होते हैं वो आता है, लेकिन आपकी जो स्पिरिट होनी चाहिए वो ना, वो कैसी होनी चाहिए, वो एंटरप्रेन्योरियल होनी चाहिए. सो माय फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग कि भाई कुछ और नहीं, आई एम सिंपली एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर. मुश्किल नहीं है ये. मुश्किल लगता है? बहुत ईजी है. सिंपली चीज़ों को थोड़ा सा विजिलेंट होकर देखना. एक और चीज़ है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने को लेके मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ना समय पता नहीं मैं कितना दे पाऊंगा. मैं आई डोंट वांट टू इनिशिएट दिस. मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ आपसे, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की सबसे जो पहली क्वालिटी और रिक्वायरमेंट है ना, वो है ऑब्जर्वेशन. आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, आप कितना अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. जितनी बढ़िया आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, उतनी ज़्यादा चांसेस है आप जो है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाओगे. सर ऑब्जर्वेशन के नाम पे भाग गया वो. तो ऑब्जर्वेशन क्या समझते हैं आप? ऑब्जर्वेशन से क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? खाली उसको देखना नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई. अगर आप ये सोच के हर चीज को प्रॉब्लम की तरह, मैं कह रहा हूं कि सिंपली आप देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग. अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी है ना, वो होनी चाहिए. आपके अंदर वो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए टू नो थिंग्स, कि अरे यार ये ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है. व्हाट इज द कोर चीज क्या है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है. जब आपको वो क्या है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में पता चलता, मैं मानूंगा कि आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी होगी, उतनी ज़्यादा आप उसको और ऑब्जर्व डीपली अंडरस्टैंड करेंगे. जितने डीपली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी ज़्यादा यू विल हैव अ क्लैरिटी अबाउट दैट. इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल, योर चांसेस ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम इज वेरी हाई. प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी तो सॉल्यूशन भी समझ ही नहीं आएगा.
अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूं, ये तो मैंने 4 चीजें बता दी, उसके अलावा कुछ चीजें बताता हूं। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता कौन सी है, जिसमें सक्सेस के पूरे चांसेस हैं? व्हाट इज गुड हैपनिंग इन द मार्केट? मार्केट में ऐसा क्या है जो अच्छा हो रहा है, उसको और अच्छा कैसे बना सकता हूं? सिंपल, क्योंकि जो चीज मार्केट में ऑलरेडी हो रही है उसको और बेटर में अगर मैं बना सकता हूं तो मेरे सक्सेस के चांसेस कैसे हैं? बहुत हाई हैं। वी हैव सीन सो मेनी केसेस। अभी एडमिशन का काम चल रहा है ना, आजकल यूजी के एडमिशन शुरू हो गए, तो अपने पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सुबह से लगा हूँ वही चीज़ कर रहा हूँ। खाना भी 1 बजे खाया, उसके बाद यहाँ आना भी है ना, ठीक है फटाफट जो तैयार होके आना है, तो लेट हो गए तो क्या किया मैंने, टाइम बहुत कम रह गया था, टैक्सी के बजाय क्या बुक किया? रैपिडो। ठीक है, हालांकि सेफ नहीं है, उसका जो हेलमेट था सेफ नहीं है, लेकिन अब मेरी मजबूरी ऐसी थी कि मुझे टाइम पे यहाँ पहुँचना है, पहला दिन है, कमिटमेंट की है कि आऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा, इतने सारे लोग इंतज़ार करेंगे ये भी पता था, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं रैपिडो करके एज कंपेयर टू द टैक्सी कम समय में सही समय पे पहुंच सकता था। किसी ने तो सोचा ही होगा ना ये। टैक्सी सर्विसेज, आप मुझे बता सकते हो टैक्सी सर्विसेज इस धरती में, इस दुनिया में कब से हैं? हाँ जी, 500-600 साल पुराने। हाँ जो भी है भाई बोल दिया, अब मैं कहाँ जाके मैं ढूंढूंगा उसको। पहले बैलगाड़ी, उससे पहले लोग उठा के लेके जाते थे पालकी से, दैट वाज आल्सो पेड, तो टैक्सी ही थी वो भी। यू कैन सी द इवोल्यूशन, राइट, कैसे इवॉल्व हुआ। उस फॉरगेट अबाउट दैट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ थिंग, अपना बहुत पीछे नहीं जाते हैं, 2010-11 की बात या 7-8-9-10 की बात, व्हेन ओला उबर वाज नॉट देयर, उस सिनेरियो की बात करते हैं। ब्लैक टैक्सी, येलो टैक्सी, जो भी है ना, टैक्सीज थी। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ टैक्सी? आपको जाना पड़ेगा वहां पे जहां स्टैंड है, वहां बुक करना पड़ेगा, तब वो आएगा। मीन बेशक मैं बहुत लकी हूं कि मेरे घर से 100 मीटर दूर ही टैक्सी स्टैंड है, फिर भी जाना तो पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है मेरे घर से 400-500 किलोमीटर दूर हो, किलोमीटर कह रहा हूँ, मीटर दूर हो, या 2 किलोमीटर दूर हो। सुबह मुझे अर्ली अगर एयरपोर्ट जाना है तो आई नीड टू मैनेज इन द नाइट ओनली, है ना, कि कल सुबह मेरे पास ये आएगा। टैक्सीज तो थी, लेकिन लोगों ने समझा कि इस सर्विस को और बेटर कैसे बनाया जाए। बिलीव मी, ये जितने भी इनोवेशंस हैं हमारे आसपास, ये सब हमारे आलस्य की देन है। हम जितने आलसी होते गए, इनोवेटर उतना हम लोगों को आलसी बनाते गए, है ना। दे आर मेकिंग आवर लाइफ ईजी, इजंट इट। इनोवेशन का मतलब ही ये है, उन्होंने हमारी लाइफ को क्या कर दिया? ईजी कर दिया। उनको पता है कि इनकी लाइफ कैसे ईजी की जा सकती है। तो ये टैक्सी का आइडिया जिस किसी को भी आया होगा, जो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए बनाने का, ये भी ऐसे ही हमारी लाइफ को ईजी करना। मीन्स द टैक्सी सर्विस वॉज देयर, दे जस्ट थॉट कि हाउ टू मेक इट ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स, एंड दे केम विद दिस ओला उबर काइंड ऑफ थिंग। दे हैव इंटीग्रेटेड सो मेनी थिंग्स। ये अपना ये जस्ट इमेजिन, ट्रेडिशनल टैक्सी में और ओला उबर की टैक्सी में फ़र्क है। आपको कहीं जाना ही नहीं है, डोर स्टेप पे आती है ना, आपको सिंपली बुक करना है, डोर स्टेप पे आती है। फेयर भी बिल्कुल जो भी डिसाइड हो गया वो आपको पहले पता चल जाता है कि इतने में जाना है, कोई चिक चिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नेविगेशन लगा दिया है, अब वो डर भी चला गया कि टैक्सी वाला आपको गोल गोल घुमाएगा। तो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ऐड हुई उस आइडिया में, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दैट एग्जिस्टिंग सर्विसेज बेटर फॉर अस। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आपको उसमें भी देखो, आज की डेट में भी लोगों ने सोचा कि बहुत सारे लोगों को जल्दी जाना होगा तो उसको टैक्सी की जगह जो ना बाइक दे दो, ऑटो दे दो, बाइक दे दो, रैपिडो कर लिया, फिर ड्राइव इन कर दिया कि जहाँ पे बार्गेन कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें कर दी। तो क्या आपको लगता है इज दिस द एंड? नो, कल को पता नहीं और क्या चीज़ें आएंगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, how you can make that more convenient, more valuable for the consumers. If you are able to do that, there is lot of scope for you, lot of chances for you.
आप क्या वैल्यू देते हो, खेल सारा उसी चीज का है। वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत बोलते हैं ना हम। वैल्यू प्रोपोजिशन यही है, ऐसी क्या चीज है कि जिसके लिए सामने वाला अपनी जेब से पैसे निकाल के आपको दे रहा है। गन पॉइंट के अलावा बंदूक तान के तो सब दे देंगे ना कि भैया। वैसे भी अगर हम देखेंगे कस्टमर्स पेइंग, खरीदना, अगर हम, आप लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा या पढ़ना है अभी? पढ़ लिया, बहुत आसान है। आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, बाइंग प्रोसेस पढ़ा, कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जो बाई बटन है ना, जब पैसे देते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रोसेस फॉलो होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना, उस प्रोसेस के एंड पॉइंट को ध्यान में रख के करता है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि बंदा जो है अपना डिसीजन लास्ट में भी बदले ना। वो लगे कि भाई ये लो भैया मेरा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कोई बात नहीं मैं भर दूंगा बाद में, पहले ये दे दो। यू नीड टू क्रिएट दैट वैल्यू फॉर योर मार्केट। इफ यू आर डूइंग दैट, इफ यू आर क्रिएटिंग दैट वैल्यू, आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सपोज एक प्रॉब्लम है, यू आर कमिंग विद द सॉल्यूशन, because the problem is already there, people are searching for solution, right? So then you don't need to market your product. ऐसे में क्या, you need to simply tell okay this is the problem, this is here. कोविड आया था ना, जैसे ही कोविड के इंजेक्शन आए, लोग लाइन लगा के गए भाई लगाने, बेशक चाहे फ्री में था, गवर्नमेंट वाज पेइंग, ठीक है, बट पीपल वर इन क्यू टू हैव दैट, बिकॉज दैट वाज द सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Similarly, if you are addressing any problem in the market, you no need to spend on publicizing or making your product familiar with the, you simply need to tell guys we are here, हम हैं. तो वो तब है जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, यस, अब जो बात करेगा मैं उससे सवाल भी पूछूंगा. ऐसा करना चाहिए क्या? अरे एमबीए वाले लोग हैं यार आप लोग. पूछना चाहिए. उसको तो अभी भी पता नहीं है कि मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. यस, ये कह रहा तुम जानो, मुझे पता नहीं है, छोड़ो उसको, मैं भी इग्नोर करता हूँ उसको. मैं एक चीज़, मैं क्या कह रहा था मैं वही भूल गया. सो मार्केट में अगर एक दूसरा किस्सा होता है. आप लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा, इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग भी पढ़ा होगा. डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े मार्केटिंग के. पहला कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? जो भी बना सकते हो आप बनाओ, चीजें थोड़ी सस्ती रखो और लोगों के आसपास ले जाओ, लोग खरीदेंगे. यही था ना कॉन्सेप्ट. फिर कहा कि सब लोग यही कर रहे हैं तो आप जो है तब सर्वाइव करोगे जब आप क्वालिटी की बात कर रहे हो. देन केम द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. आप जो भी बना रहे हो वो बनाओ, देन ब्लो योर ट्रम्पेट कि यार मैंने ये बनाया, मेरे प्रोडक्ट में ये खासियत है. अगर आप अपनी इच्छा से कोई चीज़ बनाओगे ना, उसको बेचने में हमेशा मुश्किलें आएंगी. आपको बताना पड़ेगा जनता को, आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट आई हैव मेड, ये आपको ऐसे बेनिफिट दे सकता है. अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया होगा तो लोग ना मारे मारे फिर रहे हैं उसके लिए. कोई ड्रग्स वाली बात हो जाएगी, जब उसको तलब आएगी ना तो वो खुद से ढूंढेगा. एनीवन सिगरेट स्मोकर हियर? उसको यहाँ आसपास कहीं पे भी जब उसको ज़रूरत पड़ेगी ना, वो खुद से ढूंढता हुआ जाएगा. ये है, आपको वो चीज़ बनानी है. आई एम नॉट सेइंग कि सिगरेट बनानी है, आपको वो प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए मार्केट में इंतज़ार है, जो आपके प्रोडक्ट को जो खरीदने के लिए तैयार हैं. सिंपल सी बात है. इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यूज़. अब क्लास खत्म करने का टाइम आ रहा है, तो मैं 2-3 लोगों को ऐसे रैंडमली में सिंपली मतलब पूछूंगा कि क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने आज क्या सीखा. तो वहीं से शुरू करता हूँ. भैया अभी नहीं मानेगा तो मैं भी नहीं मानूंगा. बताना उसको, योर फ्रेंड. व्हाट्स योर नेम मैन? सॉरी, सुधांशु. है बड़ा क्या नाम है यार, काश मेरा नाम भी सुधांशु होता. घर वालों ने रमेश रख दिया. चलिए सुधांशु, हम बात करते हैं. आज क्या सीखा आपने? पकड़ा गया है? क्या सीखा? वेरी सॉलिड एंड फुल प्रूफ आंसर. आज एंटरप्रेन्योरशिप सीखा. मैं कैसे डिनाई करूं?
दोबारा आएगा या मतलब यही खत्म हो जाएगा तेरा मेरी दोस्ती? आएगा ना? प्लीज़ क्लास में भी रहना है मेरे साथ, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ठीक है? चलिए वाइंड अप करते हैं। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा क्या लेना है? लाइफस्टाइल एंड लाइफ स्किल। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, आपको ऐसे बार बार जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं उसी चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ओके ठीक है यार ये तो हो ही रहा था, ये तो हो ही रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई इट इज़ हैपनिंग। आपको वो जो वाई वाला स्विच है ना वो ऑन रखना पड़ेगा कि यार ये क्यों हो रहा है, मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है ज़्यादा, मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जब आप वो वाई वाला ऑन रखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की बजाय अपॉर्चुनिटी वाले पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। बहुत मुश्किल है क्या ये करना? मुश्किल है क्या? अरे इसको पूछ रहा हूँ, ये तुझे देख रहा भाई। मुश्किल है मुश्किल? कितने लोगों के पास ऐसा लगता है कि यार मतलब सिंपली ऑनेस्ट आंसर, कितने लोगों को लगता है कि भाई जॉब से बेटर जो है ना अपना कुछ करना है? भाई सारी कंपनियां खाली हो जाएंगी, आप लोग छोड़ के आओगे, ऐसे कैसे चलेगा? तो अभी तक अपना क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये बताओ? मेरे से नहीं मिले थे इसलिए हाँ, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ, राइट, ग्रेट। ये ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग? शी हैज़ ट्राइड समथिंग, ड्यू टू सम रीजन शी फेल्ड। कीड़ा जो होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप का वो मरता नहीं है, वो रहेगा एंड डेफिनेटली शी विल गो बैक एंड ट्राई दैट अगेन। पिछली बार जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रिपीट नहीं करेगी। मिस्टेक से एक चीज़ और याद आई, जब आप ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होती है ना, फिर आपको हर चीज़ सीखने के लिए खुद गलती करना ज़रूरी नहीं होता है, फिर आप दूसरे की गलती से सीखते हो। वो तब होगा जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जब आप देखते हो कि अच्छा इससे ये गलती क्यों हुई। हर बार अगर मुझे कुछ सीखने के लिए खुद से ही गलती करनी पड़ेगी तो मुझे लगता है मेरे को तो पता नहीं कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे। सो इससे अच्छा है कि किसी दूसरे की गलती से सीखें और वो ना करें। देखो एक चीज़ है, सपोज हम ना एक ऐसे करके एक रिंग है, मान लीजिए एक रिंग, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ वैसे, मैं यहाँ पे आपको खाली बता रहा हूँ। यहाँ से एक रिंग है ना, मुझे ऐसे करके मान लो सपोज ये बॉटल है और एक काफ़ी डिस्टेंस से मुझे इसको ऐसे थ्रो करके उसको उसमें डालना है। मेरे को 4 ही मौके मिल रहे हैं, तो मैं 4 मौके में देख रहा हूँ, मैं 4 मौके हैं ना मेरे पास। सपोज अगर 100 लोग हैं यहाँ पे और मैं लास्ट नंबर पे हूँ, मेरे पास कितने मौके हैं? समझ रहे हो? मेरे से पहले इतने सारे लोग करेंगे। अगर मैं ऑब्जर्वेंट हूँ तो मैं ये समझूंगा कि यार उसका पढ़ गया था, उसने क्या किया था, उसका नहीं पढ़ा था, उसने क्या नहीं किया था, तो मुझे उससे भी सीखना है। तो मेरे पास जो चांसेस हो गए वो कैसे हो गए? मल्टीप्लाई हो गए, वो सिर्फ पर्सपेक्टिव बदलने से। मैं ये करता हूँ क्लास में, ये ना मैं ये ऐसे गेम्स खेलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में, तो जो लोग देखते हैं वो तो समझ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अच्छा ठीक है फॉर द सेक ऑफ, जिनको लगता है कि हम खाली रिंग फेंक रहे हैं, तो वो खाली देखते हैं। यही फ़र्क है। आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होने से आप सामने वाले ने क्या किया कि वो सक्सेसफुल हुआ वो सीखोगे, उसने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से फेल हुआ वो भी सीखोगे। फेलियर स्टोरीज आर मोर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई नीड टू फेल माई सेल्फ,
I'll go through someone else's failure journey. I will not repeat all those mistakes and that will ensure my success. क्लियर है? तो मुझे खुद से नहीं करनी है. हाँ जी, और कोई है जो और स्टार्टअप कर रहा है, जिसके पास दिमाग में आइडिया है या पॉसिबिलिटी है? हाँ, लेकिन ट्राई किया ना, कर. तो देखो एक चीज़ है, जब तक नया सोचोगे नहीं तब तक नया करोगे भी नहीं. कितनी बार ऐसा होता है, ओ यार ऐसा कुछ तो मैंने भी सोचा था, ओ यार ऐसा कुछ तो मैंने भी सोचा था. कितनी सारी प्रॉब्लम्स है. आई रिसेंटली मेट वन जेंटलमैन, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत कुछ, लेकिन इतना हम्बल है वो इंसान, मैं फ़ैन हो गया कि इतना कुछ अचीव करने के बाद भी मेरे जैसे आदमी से भी बंदा इतने खुल के मिल रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है. मैंने बोला यार ये हुई ना बात. तो ये सीखने वाली बात है. अब अगर ऐसे ही मान लो कि बहुत ज़्यादा किसी घमंडी आदमी से मिलूँ मैं, कि बहुत एटीट्यूड में रहे, तो ये भी सीखने वाली बात है कि भाई जो भी कर लो, जो मैंने फील किया ना उसके एटीट्यूड को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, कोई मेरे बिहेवियर को लेके भी करेगा तो बेटर आई विल नॉट चेंज. तो कुछ नहीं किया ना मैंने, दो लोगों को कंपेयर किया, उसके बेस पे मैंने मेरे लिए क्या बेस्ट है वो पिक किया. ये है ऑब्जर्वेशन. इसमें तो कोई नया कोई चिप नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना है ना. सिंपल सी बात है. व्हाट इज गुड देयर इन सोसाइटी वी नीड टू अडेप्ट. व्हाट इज बैड वी विल नॉट डू दैट. सिंपल यही करना है. बिजनेस भी यही कर रहे हैं. क्या अच्छा है, किस चीज़ की ज़रूरत है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लगा रहे, कर रहे हैं, खत्म कहानी. ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो ना बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग काइंड ऑफ आइडिया ही आए. बहुत बेसिक सी चीज़ भी कई बार बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाती है. थिंग इज कि हम हमेशा बड़ा सोचने का ही सोचते हैं. मैं कुछ बड़ा करूँगा, भाई छोटा करेगा ना वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा. अगर मैं सोचूंगा कि मुझे बड़ा ही करना है तो फिर हू नोज़ कि अगला जन्म या फिर इस जन्म भी हो सकता है. लास्ट 5 minutes, योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी. उससे पहले मैं एक और चीज़ पूछ लूँ. अटेंडेंस वाला पार्ट एक शीट मेरे पास है, दूसरी और कुछ और किसी के पास? सबकी अटेंडेंस मार्क होगी? गुड. किसी कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो. हाँ यस सर प्लीज़. बिजनेस चलता है, कोई भी प्रोडक्शन करो, कोई भी कुछ करो, कस्टमर चाहिए उसको. हाँ. तो कस्टमर लाने के लिए एक बिजनेसमैन क्या करता है? सर का क्वेश्चन सुन लीजिए आप सब लोग. ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक कस्टमर नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है. ठीक है. तो सर कह रहे हैं कि कस्टमर लाने के लिए हम क्या करें. इसकी दो अप्रोच है. सर जो बात कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि हमने कुछ बना लिया, अब मैं कस्टमर ढूंढ रहा हूं कि कस्टमर कैसे मैं एक्वायर करूं. दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि मैं वही चीज़ बनाऊं जिसकी मार्केट में डिमांड है. ये मार्केटिंग है, ये बदल चुका है. पहले हम क्या करते थे, मैं किस चीज़ में अच्छा हूं मैं वो करूंगा. अब मैं देखूंगा कि ये किस को सूट करती है, फिर मैं उनको बुलाऊं अपने पास. अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो इस चीज़ में अच्छा हूं लेकिन मार्केट को ये चीज़ नहीं चाहिए, मार्केट को ये चीज़ चाहिए, मैं उस चीज़ में अच्छा होने की कोशिश करूंगा. चेंज है सर. अब जो है आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है जिसमें आप अच्छे हैं लेकिन मार्केट को ज़रूरत नहीं है. ऐसे में आपको कस्टमर समटाइम इट ऑल्सो हैपेंस. आपने तो कुछ कर लिया, मार्केट में ज़रूरत भी थी. आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ. आप भी वही कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी वही कर रहा है, मार्केट में ज़रूरत भी है. अब उसका प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिशन है. मार्केट तो उतना ही है, कुछ इधर आएंगे कुछ उधर जाएंगे. आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके साथ ही रहे, तो ऐसा क्या करूं कि उसको वैल्यू लगे. एक एग्जांपल दे रहा हूं. आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो मॉल में. आप इतने मतलब रैशनल कस्टमर्स हो कि आपके पास ब्रांड पहले से कोई दिमाग में नहीं है. ओके. आप वहां पे जा रहे हैं, आपने देखा एक प्रोडक्ट देखा, उसमें लिखा था ऑन साइट वारंटी 5 years. आपने एक दूसरा देखा सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, उसमें लिखा कि वारंटी 5 years. इसमें लिखा ऑन साइट वारंटी 5 years. उसकी वारंटी है, आपकी ऑन साइट है. अब दोनों में फर्क है.
ऑन साइट में क्या हो गया, घर पे आके ठीक करेगा। उसने कहा कि वारंटी है, आपको लेके भी आना पड़ सकता है, क्लियर नहीं है। दूसरा, इसने कहा 5 की जगह इसने 7 कर दिया। ये चीज है जो कस्टमर को डाइवर्ट करेगी। आपको बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, आप जब भी कोई चीज बनाओ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कोई, मैंने अगर इस बॉटल को खरीदने के लिए पैसे खर्च किया है ना, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट थी जो ये पूरी करती थी, मैंने इसलिए खरीद लिया। ऑल्दो मेरी वाइफ लेके आई थी, मैं वैसे उठा के लाया हूँ, बट पॉइंट ये है, ठीक है, कि भाई ठीक है मुझे पानी चाहिए था तो मैं लिया। आजकल मौसम भी ऐसा, इतनी गर्मी भी नहीं है कि नहीं तो मेरे पास फ्लास्क टाइप में होता जिसमें ठंडा रहता। आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले की क्या ज़रूरत है, क्या आपका प्रोडक्ट वो चीज़ पूरी करता है कि नहीं करता। अगर कर रहा है ना, कस्टमर आमिर खान की बात झक मार के आएगा, है ना, वो अपने आप से आएगा अगर आपने वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया है। आई होप सर मैं जवाब दे पाया। और किसी को कोई सवाल? जी सर, पर इसने बंदा रखा हुआ है साथ में हाथ उठाने के लिए, दूसरा उसका हाथ उठा रहा है, बैठ के भी बोल सकते हो। कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आपने टीम बनाई, हाँ लेकिन आप उनको पे कर रहे हैं क्योंकि आपका आइडिया है, आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मेरा आईटी फील्ड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, बंदे काम कर रहे हैं, छोटी टीम है, लेकिन कहीं से उनको अच्छा ऑफर आ जाता है, वो छोड़ के चल जाते हैं। ये बहुत मतलब स्टार्टअप का ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ऊपर से फिर मेरी फाइनेंस भी लग रही है, जॉब छोड़ दी मैंने, तो मुझे मतलब वो चले गए तो सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ। अगले 6-7 महीने मुझे उनको जॉब करके वो पे करना पड़ेगा। बहुत वैलिड इन्होंने एक सवाल उठाया है। आपने एक स्टार्टअप आइडिया है, आपने एक टीम बना ली, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग कैमरे पे सुन रहे हो तो उन तक भी बात पहुंचेगी। आपने एक आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया, यूर आइडिया, आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपने उसके लिए एक टीम भी बना दी। जाहिर सी बात है आइडिया पे ना ऐसा नहीं होता कि आज काम शुरू कर दे कल से अर्निंग शुरू हो जाएगी। यू आर सपोज टू पे देम। अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उनको बहुत अच्छा पे कर पा रहे हो। ऐसे में पॉसिबिलिटी ये है कि भाई दोज हु आर नॉट रियली एसोसिएटेड विद द आइडिया, दोज हु आर डूइंग जस्ट जॉब, उनको जैसे ही बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो स्विच कर जाएंगे, एंड वी डोंट हैव एनी राइट टू स्टॉप देम। द ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू एंश्योर कि हम उनको ऐसा क्या करें कि वो छोड़ के ना जाए। देखो दुनिया में जो आया है ना वो तो जाएगा, उस पर किसी का बस नहीं। एम्प्लॉय भी है ना, अगर आपका, आप एक चीज़ समझिए, मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय है, आप उसको कह रहे हैं कि मैं जितना तेरे को दे रहा हूँ उससे, अमन गुप्ता की बात ले लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि JBL उसको जो है ना बोलता कि ठीक है तेरे को 50% भी दे रहे हैं, लेकिन उस बंदे के दिमाग में जो अपना करने का था ना, एक दिन वो 100% पे भी बोलता कि मैं अपना करूँगा, तो उसको नहीं रोक सकते हैं हम। हमें खाली इंश्योर करना पड़ेगा, दो चीज़ें होती है इसमें। ए, इफ दैट इंडिविजुअल इज वेरी की पर्सन फॉर योर प्रोजेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, इनिशियल स्टेज है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा लालची मत हो जाओ, उसको बोलो कि ये मेरा आइडिया, इस पे काम करते हैं, 50% इक्विटी तेरी। उसको उसमें जब तक ओनरशिप नहीं दोगे क्यों रुकेगा भाई वो? यू नीड टू गिव हिम दैट काइंड। देखो उसको भी पता है मेहनत मेरी है, बना मैं रहा हूं, कल को जो बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो ये होगा, मैं क्यों भाई, मेरे पास और अपॉर्चुनिटी में वहां जाऊंगा। जब आप उसको एसोसिएट करवाओगे, उसको बोलोगे कि यस नॉट 50%, 25% तुझे दे रहा हूँ, स्वेट इक्विटी बोलते हैं ना जिसको हम, ESOPs बोलते हैं, है ना, ESOPs में दे दो उसको कि भाई ठीक है कल को जब होगा तो अभी तू सैलरी कम ले ले लेकिन तू इसमें ओनरशिप ले ले। तो ये एक तरीका हो सकता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अच्छे एम्प्लॉय लेके आना, उससे मुश्किल है उसको रिटेन करना। रिटेन करना ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वो आपके बिजनेस को इनसाइड आउट जानता है। आपको छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करेगा तो फिर तारा रारा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे, किसी को प्यार से, किसी को मुझे फिर पास आना पड़ेगा। टाइम निकल जाता है। जैसे एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ, फेल हुए, अगले 7-8 महीने मेरी सैलरी के पूरी उसमें चले गए। इसीलिए स्टार्टअप है दोस्त, आसान होता तो हर कोई करता, है ना। हमारे पास भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं, हमारे पास भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फाउंडर जो है वो 6 महीने 4 महीने काम करते, पैसा लेके आते, फिर वहाँ लगाते हैं, फिर लगे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि एक दिन ये बड़ा कुछ करेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ इसके अलावा,
किसी को अभी भी कोई डाउट, कोई आइडिया, कोई किसी चीज़ पे डिस्कशन करनी हो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि सर आई वांट टू डिस्कस दिस। जब भी टाइम लगेगा आई विल कॉल बैक यू, आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो मैं अपने ऑफिस बुला के डिस्कस करूँगा, ठीक है। रोहिणी, सेक्टर 11। So thank you very much.